So, Hello everyone. First of all, I would like to welcome you all on behalf of Platform Tech Group of PSSGRC, Hoshiarpur. Platform is the only official technical group of PSSGRC which is financially independent. Having said that, I would also like to mention that Platform has a very strong alumni base with our super alumni being placed in all the big multinational companies like Cisco, Yellow.ai, Amazon, Paytm, just to name a few. Platform also records the record of 100% placement and highest package from the college every year since this community has established. Platform helps its members to gain multiple technical skills that will prove to be helpful in their placements. And today, I'm glad to introduce Ms. Mosina Ashraf, a mentor from Coding Blocks, who is a versatile undergraduate and has innate understanding of the concepts, which makes her way of teaching almost like learning through osmosis. She is a competitive programmer and a front-end web developer. Apart from having an excellent academic record, with her sense of innovation, she has contributed in creating great teaching content. Known for her euphonious voice, warm hearted nature, and coding skills, she blends proficiently as a mentor. She has also helped a lot of students in getting placed in all the FANC level companies. Over to you, ma'am. Thank you so much, Chandan, for the nice introduction and good evening, everyone. Thank you so much, Gaurav and Nikhil and everyone who is present here for conducting this session. Uh, I would like to welcome you all in today's session. And basically, in today's session, we'll be talking about the things that you should first know before going for the placements, before staying in the placements. And for this, I'm very thankful for all the people who are coordinating this session because as I always think that these sessions should be there to guide the students to know that what should be done before sitting for the placements. So, yeah, I welcome you all in today's session and thank you so much for giving me the opportunity to take up this session today. First of all, can you just let me know, all the people who are here, can you let me know that should I start my session in English? Should I go for Hindi or should I continue in Hindi or English both? So please let me know in the chat box. You have the option of chat box. So जल्दी से बता दो so that ना आज का session will be a wonderful session and will be just solving all the queries and जो भी किसी के mind में because time तो waste किसी को नहीं करना तो आज के session में अगर किसी के भी mind में कोई भी query होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए so because I think most of the people are from first and second year so taking this very thing in mind so I want कि जितनी भी आपकी mind में जो भी आज तक की जितनी भी queries है regarding what should be done what should not be done so I want everything should be cleared after the session itself so please let me know that acha so many people are saying that you should go for both English mix okay so there are so many votes for like both so let us go for both I will take up the session in English and Hindi as well so जल्दी से मुझे ये बता दो सब लोग जल्दी से बता दो एंड लेट मी टेल यू वन थिंग आई जस्ट डोंट लाइक कि मतलब बस सेशन देखना है मतलब जैसे ना चलता है सेशन I just don't like those very things. So let us make this session an interactive one that you will be there जो भी आपकी queries है मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं ही बोलते जाऊं so it's better that let us make this session an interactive one and for that what we will be doing is you will just let me know first that आप किस year में हो and also let me know कि what's your preferred language if you have started तो कौन सी language आपने start करी है अभी तक and if you have not so what's your plan to like which language you will prefer
और अगर आपने नहीं किया है, नहीं भी किया है, तो इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, लाइक ऑलराइट, आई विल बी टेलिंग इन द सेशन इटसेल्फ कि आपको कौन सी लैंग्वेज क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। बट फॉर नाउ टेल मी दिस वेरी थिंग कि आप किस ईयर में हो, एंड टेल मी कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो कौन सी लैंग्वेज आती है, जल्दी से बता दो। सो प्लीज, आई वांट फर्स्ट ईयर लर्निंग सी लैंग्वेज, और राइट, सीपीपी सी, फर्स्ट ईयर, ओके, गुड। और बीच में किसी का कोई भी अगर क्वेरी होती है तो दे कैन ऑल्सो रेज देयर हैंड्स आफ्टर द सेशन, लाइक इन बिटवीन द सेशन आई विल गिव द माइक एक्सेस एज वेल, इफ एनीबडी वांट्स टू पुट हिज और हर डाउट, मतलब माइक पे भी बोलना चाह रहे हैं तो दे कैन, आई विल गिव द माइक एक्सेस. So there are so many people. There is Khushbu, Arman, everything. Every person is from first year, and I am not telling that आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है. What I am telling is, I am telling कि आपको मतलब C++, सी, जावा, मतलब कौन सी लैंग्वेज आती है. I am just telling that very thing. वो तो अब 12th तक, लाइक 12th तक कोई पूछता कि कौन सी लैंग्वेज आती है, तो हम कहते हैं कि हमें हिंदी और इंग्लिश और जो भी बाकी की लैंग्वेज आती है, पंजाबी आती है. लेकिन अभी हमारे लिए लैंग्वेज कुछ और होती है इंजीनियर्स के लिए. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, एंड दे आर सेइंग दैट दे नो सी लैंग्वेज एंड दे नो C++, राइट? So taking this very thing in consideration, can you just let me know the general queries that you people are facing this time? कि क्या करना चाहिए, क्या चीजें आपको थोड़ा बहुत, आई जस्ट वांट ए जनरल आइडिया, आई कैन फ्रेम दिस सेशन अकॉर्डिंगली, कि क्या क्या क्वेरीज आपके दिमाग में चल रही है जो आपको लगता है कि क्या नहीं करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, जो कुछ लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग जावा कर रहे हैं, एंड यू पीपल, सम मोस्ट ऑफ द पीपल हियर विल बी हैविंग नो आइडिया कि कौन क्यों कैसे कर रहा है. तो लाइक व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर डूइंग सो. सो कैन यू जस्ट टेल मी कि मतलब आपने जो लैंग्वेज चूज करी वो आपने क्यों करी, एंड मोर ओवर टेल मी दिस वेरी थिंग कि आपकी क्या क्वेरीज है. फॉर नो व्हाट आर योर जनरल क्वेरीज दैट आर गोइंग ऑन योर माइंड कि मतलब क्यों लैंग्वेज सीखनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड यू विल बी सीइंग योर सीनियर्स गेटिंग प्लेस्ड इन गुड कंपनीज, तो उन्होंने कैसे किया, क्या हमारा प्लेसमेंट हो सकता है. सो आई थिंक दीज माइट बी द जनरल क्वेरीज दैट माइट बी गोइंग इन लाइक इन योर हेड्स, राइट? सो जल्दी से मुझे ये बता दो कि क्या क्वेरीज आपको लगता है, क्या मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टुडेज सेशन. जल्दी से ये वाली चीज बता दो प्लीज. Let us be active for this hour. So let us make this hour कि आपके थोड़े बहुत चीजें अच्छी हो जाए और आपको पता चले कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी. So tell me the general query. People want me to get like answered. तो वो वाली queries आप मुझे जल्दी से बता दो. That what are the general queries that are going on your like mind? So जल्दी से बता दो. All right. So should we focus on two or three mainstream languages or focus on one? Knowledge about different domains like cybersecurity, web development, competitive programming. Where should I start from? This is the like main question that what should think of. Basics. Okay. Tell us we need to start with C++ or Java after doing C language, mini. All right. जल्दी से बाकी सब कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है. अगर शर्म आ रही है बोलने में तो देयर इज एन ऑप्शन टू पुट सेट ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज करके. इट्स बेटर अगर नहीं ऐसे बोलना कि लोग देखेंगे कि अरे क्या पूछ रहे हैं, तो यू कैन सेट योर चैट टू पैनलिस्ट एंड आई कैन जस्ट आंसर द क्वेरी. कभी तो किसी को बताओगे. So tell us, we need to start with C++, how to get internship in second year or how to proceed for this CP questions, campus placements, how to apply for internship and how to manage college studies with internship, how to enhance logic building. So I think I got most of the questions that like I got the flow that I should start from. So I'm just sharing my screen, and after that, I will just begin with the session. What to learn after learning basics of a language to keep competitive programming in focus, Akshay. All right. So I'm just sharing my screen, and I'm just starting with today's session. I will be in between answering all the queries that you people be having.
सो सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम फर्स्ट और द सेकेंड ईयर, तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में अभी होगी ना, दैट विल बी बेसिकली कि वाई अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, लाइक क्यों हमें कोई लैंग्वेज, कोई कह रहा है कि सी प्लस प्लस सीखनी है, कोई कह रहा है जावा सीखनी है, कोई कह रहा है कुछ सीखो, लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शन दैट यू पीपल हैव। पहले तो हमें इतने ऑप्शंस मिलते हैं कि हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक व्हाट लैंग्वेज वी शुड प्रेफर एंड व्हाट वी शुड नॉट। सिंपल सी चीज है। Now, how will we decide that which language is better for us? How will we decide that how many language should we go for and what should we go for first and what next? तो ये सारी चीजें सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टुडेज सेशन I would like to say कि there should be someone to guide you to get good placement offer, because placements के लिए it hard work matters obviously, but smart work as always matters everywhere. So in case of placements हमारी smart work बहुत ज्यादा matter करती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो इस टाइम पे सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन आना चाहिए, बीइंग लाइक स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट और द सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, कोई भी किसी भी ईयर का स्टूडेंट है, सो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड दैट व्हाई अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब चाहे हमारे पास कितनी भी लैंग्वेज हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन वंस माइंड इज कि आपको एक लैंग्वेज क्यों ही सीखनी है। लाइक क्या होगा कि अगर हम एक लैंग्वेज सीखेंगे, देखो एट द एंड ऑफ द लाइक बीटेक, कोई तो ऐसा नहीं चाहेगा ना कि उसको घर पे बैठना है, नहीं चाहेगा। एवरीबडी विल लाइक विश कि मेरी अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए। एंड प्लेसमेंट बेसिकली अगर हम देखें तो इस टाइम पे आईटी सेक्टर इज द मेन सेक्टर जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। और यू वोंट बिलीव दिस थिंग दैट इंजीनियर्स की कमी इज देयर इन द मार्केट, यू वोंट बिलीव दिस थिंग बट इट इज देयर। लाइक सीरियसली, अगर किसी को बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स है ना, तो ही कैन गो एनीवेयर रिगार्डिंग ही इज इन एक्स वाई जेड कॉलेज, वो किस कॉलेज में है इट डजेंट मैटर। लेकिन उसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होती है ना, दैट इज लैंग्वेज। ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विथ यू पीपल इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी आईटी सेक्टर में जाते हो, तो यू नीड टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम्स, यू नीड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो अ लैंग्वेज जो कंप्यूटर को भी समझ आती है, जो आपको भी समझ आती है। अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। यू कैन लर्न सो मेनी लैंग्वेज, like we have we have C++, we have Java, we have JavaScript, we have for example हमारे पास Python, we have हमारे पास C hash, we have Python and we have so many other language as well, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे आके सबसे पहले फंस जाते हैं कि विच लैंग्वेज शुड वी चूज एंड विच नॉट। देखो सबसे पहली चीज अगर हम देखें ना, तो अगर मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज दे डू कि चलो पहले पाइथन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, देखो होता क्या है, आप ऐसा मान लो कि एक मशीन है जो आपको सब कुछ करके देती है और आपको बस उस मशीन को बटन ऑन करना है, आपको उसको चलाना है। तो आई कंसिडर पाइथन एज दैट वेरी लैंग्वेज जिसमें आपको ना हर कुछ सब कुछ बना बनाया होता है। लाइक आपकी फंक्शंस, आपके जो भी कुछ भी आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे होते हो, तो आपका सब कुछ बना बनाया होता है। what you just need to do is you just need to keep put up that very keyword और आपको उसको प्रोग्राम में यूज करना होता है, दैट इज इट, आपका काम हो जाता है। बट जब आप इंटरव्यूज में बैठते हो ना, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर देयर, दे विल नॉट अलाउ यू टू राइट योर कोड इन पाइथन। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, क्योंकि दे आर नॉट चेकिंग कि आप बना बनाया चीजें, आप बनी बनाई चीजें यूज कर रहे हो, दे आर चेकिंग हाउ मच यू नो द थिंग्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब वो आप उनका इंटरव्यू देते हो या आप उनके टेस्ट देते हो, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू राइट योर कोड इन पाइथन। तो उस टाइम पे दिक्कत आ जाती है कि आप पाइथन में नहीं लिख सकते, और अगर आपने पाइथन सीखी, यू डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज, सो इट विल जस्ट बिकम कि आपको मतलब उससे अच्छा सीखना ही नहीं था। अब होता ये है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल मतलब ऐसी लैंग्वेज है जो बनी बनाई है, आपको बस यूज करनी होती है। और होता क्या है कि कुछ कंपनीज आपको अगर पाइथन में अलो भी करे ना कि ठीक है आप अपना कोड कर लो पाइथन में, बट जब वो इंटरव्यूज में जब आपका सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड आता है, तो आपसे बिल्कुल बेसिक, जैसे हमारे पास अगर किसी ने सुना होगा, अच्छा कितने लोगों ने कुछ लिंक लिस्ट सुना है?
देयर इज समथिंग लाइक लिंक लिस्ट, देयर इज समथिंग लाइक स्टैक्स एंड क्यूज, देयर इज समथिंग लाइक ट्रीज। तो वो आपसे ना बिल्कुल लाइक इन सबके कैसे बनते हैं, लाइक ये कैसे बना है, क्या चीजें चलती है पीछे, कैसे बनता है, तो वो आपसे दे एक्सपेक्ट द बेसिक्स फ्रॉम यू, दे एक्सपेक्ट यू नो एवरीथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। और अगर आपने पाइथन करा होता है ना, तो पाइथन में इस लिंक लिस्ट को जो हम अगर सी प्लस प्लस जावा में या सी में इनका कोड लिखते हैं ना, तो यही लिंक लिस्ट का कोड 200-300 लाइंस का होता है। बट अगर हम पाइथन में देखें ना, तो ये एक सिंगल वर्ड कीवर्ड होता है जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, LIST। दे जस्ट डोंट वांट टू चेक कि आपने कितना मेमोराइज करा है, आपको कितने वर्ड्स आते हैं, दे जस्ट वांट टू चेक आपको बेसिक कितने आती है, सो दैट अगर कल को आप उनकी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कितनी बेसिक नॉलेज है, आपको कितना इम्प्लीमेंटेशन आता है। सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना कोई लैंग्वेज, देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको बोलूं गैस पे चाय बनानी और एक बोलूं कि आपको बस बटन ऑन करना है, चाय बन जाएगी, व्हाट विल यू प्रेफर? ऑब्वियसली वी ऑलवेज प्रेफर टू ईज द थिंग्स, तो हम प्रेफर करेंगे बस बटन दबा लिया और चाय बना ली। सो ऑब्वियसली पीपल विल गो फॉर पाइथन बिकॉज दे थिंक पाइथन इज ए इजी लैंग्वेज। लेकिन उस टाइम जब वो प्लेसमेंट्स में बैठते हैं ना, तो उस टाइम ये पाइथन उनकी हेल्प नहीं करता। तो इसीलिए इट्स बेटर, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट गो फॉर पाइथन, बट बिफोर स्टार्टिंग विद पाइथन, बिकॉज यू आर इन फर्स्ट और यू आर इन सेकेंड ईयर, so you have enough time to know about any other language as well from the very scratch, so it's not good to go with the Python initially. अब पाइथन इसीलिए नहीं करना चाहिए, सबसे पहली लैंग्वेज देयर इट शुड नॉट बी पाइथन, बिकॉज सीखने में इजी है बट आपके उतने काम की नहीं होगी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज विद द हेल्प ऑफ पाइथन अगर आपको और कोई लैंग्वेज नहीं आती। नाउ कमिंग टू आपका सी हैश, तो सी हैश में जनरली आपने देखा होगा लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते बिकॉज इसमें भी सिंटेक्स का थोड़ा इशू है और सिंटेक्स थोड़ा उल्टा पुल्टा है, तो जनरली सी हैश हम यूज नहीं करते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जनरली। देन कमिंग टू जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट भी हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी जनरली जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो उस टाइम जो आप लैंग्वेज यूज करते हो दैट इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट। और इसमें भी बहुत सारी चीजें आपकी बनी बनाई है जो आप यूज कर लेते हो। और जावास्क्रिप्ट भी एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर हम ट्रेंडिंग लैंग्वेज देखें जो यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग के लिए, तो जनरली जावास्क्रिप्ट भी हमारी जैसे सी या सी प्लस प्लस या जावा है वैसे जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होती फॉर प्रोग्रामिंग, it's use it for web development, तो javascript भी छोड़ो। Now we have three options that we have C, we have C++, we have Java। देखो सबसे पहली चीज, अगर हम C, C++ और Java की बात करें तो C++ या Java, अगर हम देखें C, तो अगर किसी ने सुना होगा ना, तो बेसिकली C++ को पहले हम ये भी बोलते थे C++ इज C with classes। तो दैट मीन C++ जो आई ना वो हमारी C से मॉडिफाइड लैंग्वेज होकर C++ बनी है। उसका मतलब मुझे ये बताओ आप सब जो यहाँ पे है, इफ यू बिन डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, मुझे ये बताओ अगर मैं ये कहती हूँ कि सी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी गई और वो हमारा सी प्लस प्लस बन गया, मुझे ये बताओ, और वो जो मॉडिफिकेशंस थी दे वर गुड मॉडिफिकेशंस, कैन यू जस्ट लेट मी नो कि अब आपको सी प्लस प्लस ज्यादा प्रेफर करना चाहिए या सी प्रेफर करना चाहिए, विच लैंग्वेज, मतलब जो सी में है वो सी प्लस प्लस में भी है, बस सी प्लस प्लस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आई जो सी में अवेलेबल नहीं थी। तो अगर मैं बोलूं इन केस कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी चाहिए इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लैंग्वेज, तो विल यू प्रेफर सी या विल यू प्रेफर सी प्लस प्लस? कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट दिस वेरी थिंग, जल्दी से बता दो जल्दी से। if I will tell you ki which language would you prefer, so can you just tell me ki okay C plus plus? So I think yeah, it's obviously because C में कुछ modifications करी गई जो अच्छी modifications थी and हमारी C plus plus बनाई गई, इसीलिए obviously वो अच्छी modifications थी तो obviously we should go for C plus plus then। बिकॉज आप अब सी सीखो, आप सी प्लस, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू कि आप ये सीखो ये नहीं सीखो, इट्स योर चॉइस, यू कैन गो फॉर एनी लैंग्वेज, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि कौन सी बेटर रहती है नाउ, क्योंकि हमारे पास अब सी जो लैंग्वेज है इट्स बेटर टू गो फॉर सी प्लस प्लस रादर देन सी, दैट्स व्हाई नाउ वी हैव ओनली टू लैंग्वेज रिमेनिंग, दैट इज सी प्लस प्लस और जावा। आई विल टेल यू कि सी प्लस प्लस और जावा में अब आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। देयर आर टू थिंग्स, वन इज अगर आपको ये आपने सोचा है कि मैं एक लैंग्वेज सीखूंगा और लैंग्वेज सीखने के बाद मुझे आगे जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तो यू शुड गो फॉर सी प्लस प्लस, ठीक है।
अगर आपने ये सोचा कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है और उसके बाद मुझे किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, मुझे कोड शेफ कोड फोर्सेस से क्वेश्चंस करने हैं, सो यू शुड गो फॉर सी प्लस प्लस, बिकॉज सी प्लस प्लस इज अ लिटिल बिट फास्टर, मतलब सी प्लस प्लस इज अ फास्टर लैंग्वेज देन जावा। तो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने में, अगर कोई प्रोग्राम आप सी प्लस प्लस में लिखते हो और वही प्रोग्राम आप जावा में लिखते हो, तो अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सी प्लस प्लस में वही प्रोग्राम आपका 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होने में लगेगा, तो जावा में वही प्रोग्राम मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम जावा का ज्यादा होता है। लेकिन जब हम बाद में कम्पिटेटिव कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम मैटर करता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं तब सी प्लस प्लस रादर देन गोइंग फॉर जावा। देखो, अब नाउ इट्स यू टू डिसाइड कि हमारा जो सी प्लस प्लस है, अगर आप ये चाहते हो कि हमें कम्पिटिटिव करना है तो यू कैन गो फॉर सी प्लस प्लस, इट्स बेटर। बट अगर आप ये चाहते हो ना कि हमें क्या ही कम्पिटिटिव का करना है, बिकॉज कम्पिटिटिव के बगैर भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि गो लाइक यू शुड गो फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और तभी जाकर आपकी प्लेसमेंट होगी, इट्स नॉट नेसेसरी। तो इसका मतलब अगर आप अब किसी के माइंड में ये है कि नहीं नहीं, अरे मतलब कुछ होते हैं कि जिनको अच्छा लगता है प्रोग्रामिंग करना, लाइक दे लाइक टू कोड, दे लाइक टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, तो दे जस्ट गो फॉर द कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उनके अपने शौक के लिए, ऐसा नहीं कि लाइक प्लेसमेंट्स या बाकी सारी चीजों के लिए, दे जस्ट गो इट फॉर देमसेल्फ। अब अगर आपको ये लगता है ना कि जावा फॉर एग्जाम्पल आपको बस ये चाहिए कि एक प्लेसमेंट ऑफर अच्छा चाहिए, चाहे वो मतलब आपको कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव ये सब कुछ नहीं करना, तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज, यू कैन गो फॉर सी प्लस प्लस, यू कैन गो फॉर जावा। क्योंकि जो कंपनी होती है ना, दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम वो कंसिडर नहीं करते। दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखा है या जावा में, अब किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो, दिस डोंट मैटर। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपको लैंग्वेज स्टार्ट करनी है ना, स्टार्ट विथ इधर सी प्लस प्लस और स्टार्ट विथ जावा। यू कैन, अगर किसी के माइंड में ये है कि हमें बस प्लेसमेंट्स के लिए ही बैठना है, हमें बस एक कंपनी के प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर सी प्लस प्लस और गो फॉर जावा। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन दैट यू पीपल वेर आस्किंग कि हमें कितनी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आई विल टेल यू वन थिंग, तो आप मुझे उस चीज का जवाब दे देना। मुझे ये बताओ, आप एक कंपनी में बैठते हो, अगर किसी को कुछ पता है तो, मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, जब आप एक किसी कंपनी में बैठते हो, क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि आपके पास मान लो एक question दिया, क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि आप आधा कोड सी प्लस प्लस में लिख सकते हो, आधा कोड जावा में लिख सकते हो, आधा कोड पाइथन में लिख सकते हो? इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस? जल्दी से बताओ, क्या हमारे पास कोई ऐसा कंपाइलर है जो ऐसे कोड को, मतलब आप आधा कोड सी प्लस प्लस में लिख रहे हो, आधा कोड जावा में लिख रहे हो, आधा कोड पाइथन में लिख रहे हो, तो देयर इज नो कंपाइलर लाइक दिस। सिंपल सी चीज है। व्हाट एट द एंड मैटर्स इज, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप उसका आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? दिस डजेंट मैटर। आप उस क्वेश्चन का आंसर, ऑब्वियसली देखो आपके पास उतना टाइम ही नहीं होता, 1 घंटे का टाइम होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको कहाँ उतना टाइम मिलेगा कि मैं, आप उसी कोड को सी प्लस प्लस में लिख रहे हो, सबमिट कर रहे हो, उसी कोड को जावा में लिख रहे हो, सबमिट कर रहे हो। एट द एंड व्हाट दिस लैंग्वेज विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट यू विल बी गिवन इन द फर्स्ट राउंड। सिंपल सी चीज है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल सी भी सीख रहे हो, सी प्लस प्लस भी सीख रहे हो, जावा भी सीख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, मान लो ये सी में सीखने में आपके 3 मंथ्स लगे, सी प्लस प्लस में मान लो 3 मंथ्स लगे, जबकि हो भी नहीं पाएगा। जावा में सीखने में 3 मंथ्स लगे, आपने तीन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बहुत सीखी, मान लो आपने सी भी 50% सीखा, आपने ये भी 60% सीखा और ये भी आपने 70% सीखा। अब मुझे ये बताओ, आपकी कंपनी में कोई क्वेश्चन पूछा और आपने जो यहाँ पे ये 50 60 70% सीखा ना, वो मान लो ये 70% में जो आपने 30% छोड़ा ना, उस 30% में ये क्वेश्चन आ गया। मुझे ये बताओ, विल यू बी एबल टू सॉल्व दैट वेरी क्वेश्चन? नहीं कर सकते। उससे अच्छा क्या ये नहीं था कि आप एक ही लैंग्वेज में फोकस करते, और अगर तुमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस वेरी दैट वेरी क्वेश्चन इजीली। तो जो आपने ये 3 3 मंथ्स डिवाइड कर लिए ना 100 लैंग्वेज मतलब सीखने के लिए, उससे अच्छा ये था कि यू हैव टू फोकस ओवर ओनली वन लैंग्वेज, जो आपने डिसाइड करा कि जब मैं प्लेसमेंट्स में बैठूंगा तो मैं इस लैंग्वेज में तब कोड कर रहा होगा। बाकी यू नो दैट वी हैव द सब्जेक्ट इन द कॉलेज, आपके पास सी होता है, आपके पास फर्स्ट ईयर में सी सीखने को देते हैं, सेकेंड ईयर में सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर, देन जावा भी देते हैं, देन पाइथन भी देते हैं। तो इज इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन, बिकॉज यू नो देयर आर द पीपल हु आर लाइक फ्रॉम फोर्थ ईयर एज वेल हियर, तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाया कि सीपी आपने सीखी, सी प्लस प्लस भी सीखी, मतलब एक सेमेस्टर में नहीं हो पाया?
सो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को कॉलेज के सब्जेक्ट्स को एज अ कॉलेज सब्जेक्ट कंसिडर करने हैं कि सी एक कॉलेज सब्जेक्ट है, सी प्लस प्लस एक कॉलेज सब्जेक्ट है जो मुझे बस पास करना है। एंड व्हाट यू हैव टू टारगेट इज कि मेरी बस एक लैंग्वेज है जो मेरी लैंग्वेज है, जिसमें मैं हमेशा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई विल हैव टू सिट फॉर द कंपनी प्लेसमेंट्स, तो मैं उसी लैंग्वेज में कोड कर रहा होगा। सो माय सजेशन वुड बी कि एक लैंग्वेज चूज करो रादर देन फोकसिंग ऑन 100 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज चूज करो एंड उस लैंग्वेज में इतनी प्रैक्टिस करो कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सो यू विल बी एबल टू आंसर इन दैट वेरी क्वेश्चन। इट डजेंट मैटर कि आप अपने रिज्यूमे में सी भी लिख रहे हो, सी प्लस प्लस भी लिख रहे हो, जावा भी लिख रहे हो, पाइथन भी लिख रहे हो, और ये भी आपको थोड़ी बहुत आता है। इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज एट द एंड कम आप तो कोड तक नहीं कर पा रहे किसी लैंग्वेज में, आप तो आंसर ही नहीं कर पाए, आप तो लॉजिक ही बिल्ड नहीं कर पा रहे। सो रादर देन राइटिंग एवरीथिंग कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इट जस्ट लाइक गुड टू फोकस ओवर ओनली वन लैंग्वेज एट अ टाइम, सो दैट अगर आपने एक लैंग्वेज पे फोकस किया यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेरीज। सो आई थिंक this question is clear that you should only focus on one language at a time. नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज जो आपको फोकस करनी चाहिए दैट शुड बी इधर सी प्लस प्लस और जावा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर दैट इज, देखो सी प्लस प्लस या जावा इसीलिए बिकॉज दीज आर द लैंग्वेज दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, जिसमें आपको सब कुछ स्क्रैच से मिलता है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। नाउ देखो आपके जो सी प्लस प्लस या जो भी जावा या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे टॉपिक्स है कि आप पढ़ते रहोगे ना तो 4 साल में भी खत्म नहीं हो जाएगा। now there is the need of smart work that you should do कि मुझे कौन सा टॉपिक पहले करना है, मुझे बाद में कौन सा टॉपिक करना है। बिकॉज देखो अगर आप ट्रीज करने पहले बैठे, ट्रीज में रिकर्जन यूज होता है। अब अगर आपने रिकर्जन नहीं पढ़ा, आपने ट्रीज पढ़ा, तो आपके उड़ने लगेगा और आपको क्या लगेगा, प्रोग्रामिंग टफ है, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स दैट वन शुड गो फॉर, कि अगर उसको सही सीक्वेंस में पढ़े तो उसको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। बिकॉज देयर आर सो मेनी कंसेप्ट दैट कैन गेट यूज्ड आगे के टॉपिक्स में जो पीछे के टॉपिक्स होते हैं, आप आगे के पढ़ लेते हो, पीछे का छोड़ देते हो और हमें टफ लगने लगता है। सो आई एम जस्ट राइटिंग द रोड मैप दैट वन शुड फॉलो फॉर द प्लेसमेंट कि किस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स अपने लाइक फॉलो करने चाहिए टू गेट द प्लेसमेंट्स। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि अगर आप इस सीक्वेंस में सारे के सारे टॉपिक्स फॉलो करते हो ना, nobody can stop you from getting placements in good company, ठीक है। लाइक गुड कंपनी का मतलब 15 LPA से ऊपर ऊपर का पैकेज। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द टॉपिक्स दैट वन शुड गो फॉर कि अगर उसको किसी भी प्लेसमेंट के लिए बैठना है, ठीक है। इन बिटवीन टेल मी इज देयर एनी क्वेरी, जितना भी मैंने अभी तक बताया, सो इज देयर एनी क्वेरी इन बिटवीन, यू कैन जस्ट टेल मी, इज देयर एनी क्वेरी, जल्दी बता दो, बी क्विक, ठीक है। So, can we start from scratch and reach somewhere during placements? I will just tell you, anonymous attendee, बता रही हूँ अभी। Now देखो, सबसे पहले the sequence of topic that one should follow is basically जब भी आप किसी लैंग्वेज पे फोकस करते हो ना, तो जहां से भी आप सीख रहे हो, जहां से भी आप सीख रहे हो, तो कैसे करना है। सबसे पहले गो फॉर द टॉपिक देयर इज, बिकॉज वही वाली चीज होती है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द थिंग जो बिल्कुल मतलब आपको आसान सी चीज लगे। सो अगर हम सबसे पहले टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स के लिए सबसे पहले व्हाट यू शुड नो इज, यू शुड नो आपका एक टॉपिक आता है दैट इज स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, बिकॉज यू हैव एनफ टाइम टू स्टार्ट एंड यू हैव एनफ टाइम टू लर्न। तो आपको सबसे पहले एक तो स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू if you will follow these very topics, like honestly you will be getting a good placement offer after the like third year itself. Now pseudo code and flow chart करने के बाद you should know the basics of the language। और basics ऐसा नहीं कि देखो ऐसे नहीं करना है कि आप एक दिन एक ट्यूटोरियल पे, अच्छा ये कितने लोगों ने ऐसा करा, सही सही बताना, कितने लोगों ने ऐसा करा कि जैसे YouTube के ट्यूटोरियल होते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन किसी ट्यूटोरियल पे गए, उसको विश लिस्ट कर लिया कि आज अब हम ये वाले भैया से पढ़ेंगे, ये सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। देन दूसरे दिन किसी दोस्त ने बताया कि नहीं नहीं वो भैया नहीं, आप इस दीदी से पढ़ लो, ये बहुत अच्छा पढ़ाती है। देन तीसरे दिन किसी और ने बताया कि नहीं नहीं ये नहीं, ये पढ़ लो। तो आपने इन सबको विश लिस्ट तो करके रखा है, बट आपने एक दिन एक के 2-4 वीडियोस देखे, उसको छोड़ दिया, दूसरे दिन दो चार वीडियोस देख ले।
तो मुझे ये बताओ कि कितने लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे करके लाइक स्टार्ट करा है, एंड दोज हु आर डूइंग दिस, अगर जल्दी से बता दो कितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं सीखना, एंड व्हाट दे डू इज एवरी डे दे जस्ट चेंज देयर माइंड कि नहीं नहीं आज इससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, बिकॉज उनको प्रॉपर गाइडेंस वहां पे नहीं मिलती कि आपको कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए फिर कौन सा करना चाहिए. So this is the sequence of the topic that you should follow. You should go for the pseudocode and then flowcharts. You should go for the basics of the language जो भी हमारे पास होती है. Then बेसिक्स में सिंपल सी चीज, आपको डेटा टाइप्स पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपको ऑपरेटर्स पता होने चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. After knowing the basics of the language, what you should go for is you should know about the loops and the conditional जो हमारे पास होते हैं, कि कौन कौन सा लूप हमारे पास होता है, या हमारे पास कौन कौन से स्विच स्टेटमेंट है, हमारे पास डू वाइल लूप है, हमारे पास फॉर लूप है, या बाकी सारी चीजें जो हमारे पास है वो क्या क्या है. यू शुड नो अबाउट दोज वेरी थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग फॉर ए लैंग्वेज. Now, after the loops and the conditionals, what you should go for is you should know that आपके पास अब जो टॉपिक आता है that is basically arrays का. लेकिन arrays में भी आपको ना सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहिए that should be 1D integer array. ठीक है, इसका रीजन आई विल टेल यू आगे कि क्यों पहले 1D integer array ही. अभी तक जब आप क्वेश्चंस करें, जैसे यहाँ पे आके जब आपने लूप्स करा ना, तो लूप्स के बाद you should pick up some questions like the pattern के कुछ questions कर लिए. और इसी तरह जब आपने अब arrays 1D start करा, arrays 1D start करने के लिए now what you should do is arrays 1D पढ़ लिया, कहीं पे गए एक वीडियो देख लिया, after that move to any of the platform like the LeetCode, or you can just go for coding blocks का, there is a platform where you can practice the questions, that is Hacker Blocks. So you can move to any of the platform and यहाँ पे जाकर आप इस प्लेटफॉर्म से, जैसे एरीज कर लिया तो वहां पर आकर आई विल जस्ट शो यू कि जब आप फॉर एग्जांपल एरीज में जाओगे तो एरीज का थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, यू जस्ट डोंट नीड टू गेट ए पीएचडी डिग्री इन द थ्योरी, तो ऐसा कुछ नहीं करना. थोड़ा बहुत आपने बेसिक्स देख लिए कि कैसे एरे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या चीजें होती है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज you can just go to like अपना Google Chrome, I'm just showing you, and what you can do is you can type in here that is LeetCode. तो LeetCode is a platform from where you can practice the questions, मतलब जो आपके अलग अलग questions होते हैं अलग अलग topics से, you can practice the questions from the LeetCode, as well as I will suggest there is another platform from where you can practice the questions, that is basically Hacker Blocks, so आप वहां से भी कर सकते हो. देखो आपको क्या करना है, डोंट कंसिडर कि अगर आपने थ्योरी पढ़ ली और आप ये कह रहे हो कि मैंने ये टॉपिक मुझे आता है, डोंट कंसिडर वो आपको आता है. जब तक आपने एक टॉपिक करा और उस टॉपिक से एटलीस्ट आपने 15 से 20 क्वेश्चंस नहीं करे, तब तक डोंट मूव टू अनदर टॉपिक, डोंट जंप टू अनदर टॉपिक, एंड तब तक आप ये कंसिडर नहीं करोगे कि हमें कोई टॉपिक आता है. सिंपल. नाउ जब आपने फॉर एग्जांपल एरीज का टॉपिक है, तो जब आपने एरीज देखा, एरीज का जो भी आपके बेसिक्स हैं आपने वो सारे कर लिए. आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज you need to go to the problem section here. You can just go to the LeetCode and you can just make your account there. Account बनाने के बाद go to the problem section. You can see the tag of the arrays here. You can see the tag of the arrays that is here. Let me show you. This is the tag of the arrays. Now what you can do is you can click on this arrays के tab पे, and यहाँ पर आकर now you will get the problems जो आपको यहाँ पर आकर मिलेगी. Let me show you. It's taking some time. So ये सारी problems पे जाकर what you need to do is you need to solve the problems from there, or what you can also do is you can go to the Hacker Blocks, that is the coding platform of Coding Blocks. So Hacker Block, you can go to the Hacker Blocks and you can just start solving the questions from there as well. So you can see this basically the Hacker Blocks का platform where you can practice the questions and you can get the basics questions जो भी आपको practice करने हैं. Let me show you. It's taking some time. Wait for a minute. So you can see कि आपका जो एरीज का क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली सम क्वेश्चन दैट इज टू सम. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन पे क्लिक करके यू विल जस्ट रीड अबाउट द क्वेश्चन स्टेटमेंट, यू विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू विल जस्ट सबमिट द सॉल्यूशन. एंड दिस इज बेसिकली हाउ यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक.
और जब आपने एक टॉपिक करा 15 से 20 क्वेश्चंस करे, देन मूव टू अनदर टॉपिक. ऐसा भागा दौड़ी नहीं करनी कि ये भी जल्दी में कर लिया, जल्दी में कर लिया, बिकॉज यू हैव एनफ टाइम टू डू द थिंग्स. Now after doing the arrays, what you need to do is, what you can do is, you can go for the sorting algorithms and searching algorithms. आपके पास जो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग अभी जो आप कर सकते हो, दैट इज वन इज द बबल सॉर्ट, जो आपको अभी पता, इसके बाद ही जो आप कर सकते हो. Another is the selection sort you should know. Another is their insertion sort that you should know. And searching mein you should know about the linear search for now. And there is one of the most important topic. देखो मैंने इसको most important topic इसलिए बोला because this is the topic जिसमें you can expect like 70% of the questions from the interview you can expect from the binary search. मतलब आप इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम बाइनरी सर्च. what you need to do is you need to just learn about these very concept. You need to learn about this very concept and binary search के अलग से question set आता है. And you can go to the lead code or you can go to the hacker blocks. You can see that there will be a topic of binary search and you can start solving the questions of binary search. तो अभी तक मैंने सबसे मेन टॉपिक बाइनरी सर्च पे फोकस करा है. After this, what you can do is, there is a topic that is basically functions. What are functions and how you create them, what are the rules to make the functions, you should know about this. After this, there is a topic that one should go for, that is, अगर आप C++ कर रहे हो तो एक टॉपिक आता है that is pointers. अगर आप C++ नहीं कर रहे हो तो like there is no concept of pointers. After that, there is a concept that one should go for, is the most important topic, one of the most important topic, that is bit masking. You should know basically what is bit masking and या इसको हम bit manipulation भी बोलते हैं. तो bit manipulation and यहाँ पर आकर इसके आपने questions कर लिए और questions कैसे किए, आपने bit masking पढ़ा and go to the lead code, go to the hacker blocks and वहां पर आकर what you can do is, यू कैन जस्ट, जैसे यहाँ पे है तो आपने क्वेश्चन का जो भी आंसर है एंड देन यू सबमिट द आंसर हियर. तो इसी तरह अगर आप हैकर ब्लॉक्स का देखते हो तो यू नीड टू क्रिएट द अकाउंट अगेन. सो फॉर एग्जांपल अगर आप हम हैकर ब्लॉक्स पे देखिए हाउ यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन, और डोंट कंसिडर कि जब तक आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं, डोंट कंसिडर आपने कोई टॉपिक करा है जब तक कि आपने उसके 15 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं. So this is basically hacker blocks पे भी आप questions कर सकते हो. Let me show you after some time. It's taking a little bit time. So let me show you. Let me show you after some time. It's taking a little bit time. So basically after this what you can do is, आपको pointers and bit masking and bit manipulation के बाद what you need to do is, you need to go for the topic that is basically आपका arrays 2D. and arrays 2D में you should know about the integer array and the character 2D array. ठीक है, आप बताओगे कि why you have not written this array 2D here. देखो यही कंफ्यूजन होता है कि आपने यहाँ से आकर पहले ये क्यों कराया और ये क्यों बाद में. बिकॉज एरीज कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर एरे 1D, कैरेक्टर एरे 2D, यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट यूज होता है वो आपका, अगर हम C++ की बात करें तो आपका पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज होता है. जब तक आपने पॉइंटर्स नहीं करा, यू कांट डू एरे 1D एरे, सॉरी यू कांट डू एरे 2D एरे 3, ये एरे 2D इंटीजर या एरे 2D कैरेक्टर और 1D कैरेक्टर. After that, what you need to do is, you need to learn about the strings. There is another topic that you should go for, like that is also one of the important topic, that is आपका sliding window. ठीक है, sliding window से you can expect a question, like पूछते हैं, बहुत बहुत बार पूछते हैं. After knowing these very topics, now you are good to go with the topic that is basically आपका recursion. ठीक है, देखो दिस इज बेसिकली द टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब दे फील कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड जहां पे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. रिकर्जन के बाद देयर इज अ टॉपिक दैट इज बेसिकली बैक ट्रैकिंग. यू शुड गो फॉर द रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग आफ्टर दैट. नाउ देखो बेसिकली अभी तक जो ग्राफ चल रहा होता है ना, अभी तक आप सीख कैसे रहे होते हैं, ऐसे सीख रहे होते हो, बच्चों वाली चीजें. जैसे ही रिकर्जन आता है ना तो दिस ग्राफ गोज हियर लाइक दिस. तो आपको क्या लगने लगता है कि अब हमसे चीजें नहीं हो पाएगी.
नाउ ऑब्वियसली अब आपको थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है कि नहीं मतलब ठीक है, एक एक दो टॉपिक टफ ही है तो कोई नहीं, मतलब हो जाएगा। तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर, यू नीड टू गिव अ लिटिल बिट मोर टाइम। जैसे ही रिकर्जन करा, लीड कोड पे गए, हैकर ब्लॉक्स पे गए एंड वहां से क्वेश्चंस कर लिए, 20 की जगह 30 क्वेश्चंस कर लिए, और देन मूव टू द बैक ट्रैकिंग, उसके क्वेश्चंस कर लिए। एंड नाउ आफ्टर दिस वेरी थिंग आपके पास यहाँ पर आकर आते हैं इंटरव्यू के पर्पज से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन ऑफ देम इज, अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, जावा में नहीं होता। देन आफ्टर दैट वी हैव यहाँ पर आकर वेक्टर्स, वी हैव अ टॉपिक दैट इज नोन एज आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड ये हमारे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मैटर करता है। And after that we have the topic of oops that one should go for before starting with the data structure and algorithm. So basically this is the set of sequence that one should follow before starting with the data structure and algorithm. और एक चीज ये है कि किसी को ये लगता है कि कौन सी कंपनी, जो मैं रोड मैप दे रही हूँ ना, आई कैन जस्ट गारंटी यू, आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग कि अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो ना, तो बड़ी से बड़ी कंपनी यू कैन इजीली क्रैक, लाइक इजीली। तो हमारा क्या होता है ना कि हम रिकर्जन पे आके अटक जाते हैं, अरे अब नहीं करना, बस हो गया, अब नहीं हो सकता हमसे, एंड देन वी कीप एक्सपेक्टिंग कि नहीं अब हमें अच्छी कंपनी मिले, अब हमें वो मिले, अब हमें ये मिले। So it's better to focus on the topics rather than thinking about that and this very thing, what will happen, what will not happen, rather than thinking on those very things. After that, it's good to go with the data structure and algorithm. तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम अब आप स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ बच्चों को ये लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो है वो कुछ अलग चीज है, वो कुछ अलग नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एक लैंग्वेज का पार्ट होता है। एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में सबसे पहले यू शुड गो फॉर द टॉपिक दैट इज लिंक्ड लिस्ट। After that there is another data structure and algorithm that is basically sorry, there is another data structure that is stacks. After stacks what you need to go for is you need to go for the queues, and queues के बाद there is another data structure that is dq. After dq what you need to know about is you should know about the trees. और देखो हमारे पास जो ट्रीज होते हैं ना, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, like we have AVL tree, we have red black tree, we have binary tree, we have binary search tree, and we have XYZ. देखो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क, हमें क्या चाहिए, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट्स में जो पूछते हैं ना, दे आर ओनली टू टाइप ऑफ ट्रीज, सेगमेंट ट्री वो सब कुछ नहीं पूछते। देयर इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दे विल आस्क यू अबाउट इज आपका एक तो बाइनरी ट्री एंड द सेकंड इज बाइनरी सर्च ट्री। तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट के लिए ऑब्वियसली वी विल डू स्मार्ट वर्क। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें वही पढ़ना है जो प्लेसमेंट्स में पूछते हैं। दैट इज ट्रीज में आपका बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। एंड मेक श्योर एवरी टाइम जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसके बेसिक्स पढ़ते हो, तो डोंट स्टिक ऑन द बेसिक्स कि आप तो यहीं पे करना है, लाइक यू आर जस्ट स्टिकिंग देयर कि नहीं अब यहीं पे रुके हैं, अब बेसिक्स ही सीखने हैं, बस हो गया। just move to any platform that you like, you can, there is hacker blocks, there is hacker rank, there is hacker there is interview bid, there is code forces, code chef, there are so many elite code, there are so many platforms where you can like you can practice। तो लेकिन जो आपको खुद जहां से अच्छा लगता है, जहां से अच्छी वाइब आती है कि आई कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हियर, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। एंड 15 से 20 क्वेश्चन करके मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक पढ़ लो, 15 से 20 क्वेश्चन करके मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज यू हैव एनफ टाइम टू रिवाइज द थिंग्स एंड डू द थिंग्स। Now after doing the trees, now what you need to do is there is a topic that is known as heaps, or this is also known as priority queue. So you should go for this priority queue. Now after this there is a topic of hash map, one should know, that is the जिसमें आता है आपका unordered map, unordered map या आपका ये सारी चीजें इसमें आती है। साथ साथ में आपको क्या करना है, जब आपने लिंक लिस्ट पढ़ा ना, तो देयर इज STL। देखो STL बेसिकली क्या होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इट्स बेसिकली, देखो जब आप लिंक लिस्ट पढ़ रहे होते हो ना, तो आप ये खुद से बना रहे होते हो कि मतलब बिल्कुल स्क्रैच से आप अपना कोड लिख रहे होते हो। लेकिन STL में क्या होता है ना, जिस तरह STL में आप बस क्या करते हो, एक फाइल को इंक्लूड कर लेते हो जिसमें वो सारा कोड बेसिक वाला लिखा होता है, एंड वो जो उसमें फंक्शन लिखे होते हैं ना, वो जो कोड लिखा होता है, वो कोड की हेल्प से आप अपना बाकी सारा कोड लिख लेते हो। जैसे जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट को अगर आप स्क्रैच से लिखते हो ना, तो आप पूरा का पूरा कोड खुद से लिखते हो। लेकिन STL की हेल्प से व्हाट वी डू इज, वो जो कोड होता है ना, वो बना बनाया किसी हेडर फाइल, किसी फाइल में स्टोर करा होता है, और वो फाइल इंक्लूड करके
हम उन्हीं फंक्शंस को यूज कर पाते हैं। तो दिस इज बेसिकली एसटीएल। अब जब आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो तो साथ साथ में उसका एसटीएल भी करते जाओ। कुछ नहीं होता, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उसका एसटीएल देख लिया कि कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। जैसे लिंक लिस्ट का जो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है तो हमें ऐसे करना पड़ता है हैश इंक्लूड लिस्ट, हमें ऐसे करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम स्टैक्स की बात करें तो हमें ऐसे हैश इंक्लूड एक फाइल होती है जिसका नाम स्टैक होता है, हमें वो इंक्लूड करनी पड़ती है। तो ये दिस इज बेसिकली एसटीएल। और फिर हम इसी में जैसे अगर स्टैक की बात करें तो हम फंक्शन पुश यूज करते हैं कि चलो एलिमेंट डाल दो, पॉप यूज करते हैं निकाल दो। तो ये सारी जो पुश पॉप का मतलब जो बेसिकली लिखा होता है ना, दैट इज रिटन इनसाइड दिस स्टैक फाइल। तो इसी तरह हमारे पास क्यूज को बेसिक से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस कर लो, देन इसका एसटीएल पढ़ लो। डीक्यू को कर लो, उसके बेसिक को देखो। एंड देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज मोस्टली आस्क्ड इन द डीक्यू, दैट इज बेसिकली मैक्सिमम इन ए विंडो। तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द डीक्यू। बाकी कुछ नहीं पूछा जाता, अगर पूछते हैं तो यही क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी यही होता है स्मार्ट वर्क, नहीं तो वो वाली चीजें करते जाओगे, बाद में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपने किया ही नहीं। सिमिलरली स्टैक्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो एक आता है आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, वो पूछते हैं। आपका स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम आती है, सो स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम आती है, दिस कैन बी आस्क्ड। आपका एक हिस्टोग्राम आता है, एक प्रॉब्लम एरिया अंडर द बार ग्राफ, सो दिस कैन बी आस्क्ड। so these are the questions that can be asked. Now after moving to the all these topics and doing the questions of these topics, what you can do is there are another data structure। देखो डिफरेंस क्या होता है ना, मोस्ट जो बहुत अच्छी कंपनीज होती है ना, मतलब 7 8 9 लाख तक जो कंपनीज होती है वो इधर तक पूछ सकती है, लाइक इससे ऊपर तक जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। लेकिन अब जो आपकी फैंग लेवल, किसी ने ये क्वेश्चन कर लिखा था कि लाइक व्हाट शुड यू लाइक डू to get placement in the FANG level companies, be it like Google, Microsoft, these very companies. So what you need to do is basically for them there are two topics that are one is graphs, जिससे आपके mostly questions पूछते हैं अच्छी companies में। And the second topic that you should go for is आपका DP, that is dynamic programming। तो जो बहुत अच्छी कंपनीज होती है ना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये सारे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन जो ये 8 9 10 लाख की कंपनीज होती हैं, दे आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, मतलब ये जो बाकी का पोर्शन है, दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। सो दिस इज बेसिकली वायर द डिफरेंस इज। और यहाँ पर आकर एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ट्राइज, जिससे आपसे पूछा जा सकता है। एंड ट्राइज में भी देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज बेसिकली मैक्सिमम of Zor, yeah, maximum Zor. So this is the question that can be asked from the tries। अगर पूछे तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं पूछते। तो these are the topics that one should go for before staying for the placements। और इसी सीक्वेंस में हर किसी को ये सारे सीक्वेंस पे फॉलो करने चाहिए। नाउ जब आपको जिस दिन आपको लाइक दिस इज माय सजेशन कि जिस दिन आपको ये लगे ना कि जो सीक्वेंस मैंने बताई है, और नाउ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू से कि अब हमें इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना, तो वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट वेरी क्वेश्चन ऑन दैट वेरी डे। डिसाइड कि अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी रिज्यूमे पे काम करना है, अब हमें बाकी स्किल्स पे काम करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे what matters is how much data structure and algorithm you know। because जो भी कंपनीज आपके ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जो भी कंपनीज आती है ना, what they expect you that you are a fresher and they expect कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आते हैं। बाकी आपके पास प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, they don't expect the projects कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है, but what they expect you that आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम प्लस ए पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से आती है। सो डोंट फोकस कि अपने दोस्त को देखा कि आज वो एमएल कर रहा है तो मैं भी एमएल करता हूँ, आज वो मशीन लर्निंग, आज वो डेटा साइंस कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, आज वो एंड्रॉइड कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। सो डोंट चेंज योर माइंड एवरी डे, just focus on these very topics because this is the cracks of everything that one should know before sitting for the placements। आपके जो प्रोजेक्ट्स देखे जाएंगे, सिंपल सी चीज है, आप इंटरव्यूज में बैठोगे तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज तो यही होती है ना कि दे जस्ट टेक ए राउंड, दैट इज असेसमेंट जो आपका होता है क्वेश्चंस का। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता ही नहीं है तो हाउ कैन यू जस्ट क्रैक दैट वेरी राउंड। और इंटरव्यू तो बात की बात है, रिज्यूमे तो बात की बात है, प्रोजेक्ट तो बात की बात है ना।
लाइक आपके रिज्यूमे में बाद में देखा, जब आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा तब जाके तो आपका रिज्यूमे देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट्स क्या है। तो डोंट फोकस ओवर द प्रोजेक्ट्स। अगर आपको मतलब अभी के लिए सबसे पहले जो आप फोकस करोगे ना, इन द फर्स्ट ईयर और इन द सेकेंड ईयर, जिस भी ईयर में हो या थर्ड ईयर में भी हो, तो फोकस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम रादर देन शोइंग दैट हाँ हमें हमारे रिज्यूमे में ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है। डोंट जस्ट गो फॉर दीज वेरी थिंग्स और कहीं से गिटहब से कोड छाप के ले आए और वो आपने दिखाया कि मैंने ना ये प्रोजेक्ट करा है। तो दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। rather than focus on the data structure and algorithm. So now coming to the placement part, that आपको किसी ने questions so I'm just going through the some of the queries that you people have asked. तो किसी ने पूछा था कि which is best competitive programming और development, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट की, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे आके आई एम गाइडिंग यू कि गो फॉर द लैंग्वेज फर्स्ट, इधर बीट आपका बीट आपका जावा और बीट आपका सी प्लस प्लस। सो आई एम फोकसिंग कि गो फॉर द लैंग्वेज फर्स्ट। बट जो बाद की बात है ना, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन योर चॉइस। अगर आपको लगता है ना कि मुझे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो प्रोजेक्ट्स करने के लिए आई शुड नो बीट वेब डेवलपमेंट, बीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बीट मशीन लर्निंग, बीट डेटा साइंस और बीट साइबर सिक्योरिटी, बीट रोबोटिक्स, बीट एनीथिंग एल्स, आईओटी, कुछ भी हो। अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे प्रोजेक्ट मेरा इंटरेस्ट है, बाद में डीएसए के बाद जब वंस यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चन दैट कैन बी गिवन टू यू, एट लीस्ट आपको ये लगे कि 3 में से 2 क्वेश्चन हमेशा हो पाते हैं, तो after that now you can focus over the project. What you can do is projects में you can go for the web development. You can go for the web development अगर आपको projects अपने बनाने हैं। और वेब डेवलपमेंट में भी आपकी 2 चीजें आती है, वन इज आपका फ्रंट एंड एंड अनदर इज आपका बैक एंड। तो इट्स ऑब्वियसली बेटर। देखो अगर आप इतना ही सीखते हो ना एक लैंग्वेज और एक प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी बीट वेब डेवलपमेंट, बीट एंड्रॉइड, बीट आपका साइबर सिक्योरिटी, बीट आपका आईओटी, बीट आपका मशीन लर्निंग, बीट आपका डेटा साइंस, बीट एनीथिंग, तो ये सारी चीजें आप यूज क्यों करते हो? आपके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, राइट? तो एक एक सीखो इनमें जो भी। अगर आपके पास बाद में बहुत अच्छा टाइम भी है तो यू कैन गो फॉर द अनदर स्किल्स, तो आप वो सारी चीजें भी सीख सकते हो। बट फॉर नाउ फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पिक अप एनी ऑफ दीज, जो भी आपको इंटरेस्ट। किसी को लगता है मुझे मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो यू कैन गो फॉर द एमएल और डेटा साइंस। अब किसी को ये लगता है कि मेरी स्किल्स, मतलब क्योंकि वेब डेवलपमेंट में यू शुड हैव द आपके थोड़ा डिजाइनिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, बिकॉज यू शुड हैव अ गुड इमेजिनेशन दैट ये कलर अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। सो यू कैन जस्ट गो फॉर द वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वो सारी चीजें, तो वो मैटर नहीं करती, आप किसी भी फील्ड में बाद में जाओ, वो मैटर नहीं करती। बट व्हाट मैटर्स इज पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आनी चाहिए। सो माय सजेशन विल बी, कॉलेज सब्जेक्ट्स को एज अ सब्जेक्ट ले लो, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आज से ही चूज करो जो आप प्लेसमेंट्स के टाइम पे जिसमें आप कोड कर रहे होगे, कि दिस विल बी माय लैंग्वेज जिसमें मैं कोड कर रहा होगा। नाउ बाकी सारी ये वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, कोई एक पिक कर लो फॉर योर प्रोजेक्ट, जब आपको मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आए तब। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें लगता है बीटेक जो है ना वो 4 साल का है, बट बीटेक 4 साल का नहीं होता। बीटेक बेसिकली प्लेसमेंट वालों के लिए 3 साल का ही होता है, बिकॉज फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग में ही कंपनीज आने लगती है, तो वी हैव ओनली 3 years टू मेक ए गुड स्किल सेट। नाउ कमिंग टू द इंटर्नशिप्स, अगर आपको डेटा इंटर्नशिप्स के लिए आपको कोई तूफान वाली चीज नहीं करनी होती, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आता है, प्लस अगर आपको साथ में एक कोई और स्किल भी है, और आपको ये जरूरत नहीं है कि आपको सी भी आती है, जावा भी आता है, सी प्लस प्लस, बस एक लैंग्वेज पे फोकस करना, उसी पे सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, एंड देन गो फॉर वेब डेवलपमेंट और एनीथिंग एल्स, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग इन द कंपनीज। और उसके लिए व्हाट आई विल सजेस्ट इज बेसिकली आप ना अपना लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना, ठीक है? लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाकर मेक कनेक्शंस, एंड आपने अगर देखा कि माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में या कहीं पे भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज है, तो आस्क फॉर द रेफरल्स फ्रॉम देम, बीट मतलब प्लेसमेंट्स के लिए, बीट इंटर्नशिप के लिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कोई है माइक्रोसॉफ्ट में, तो जस्ट राइट डाउन ए मैसेज, कनेक्ट विथ हिम, राइट डाउन ए मैसेज, आस्क फॉर द रेफरल की भाई मुझे मतलब ठीक है, आई जस्ट वांट कि
I'm just doing, I'm in third year, I'm in second year, can you please provide me referral in your company? So that should be a good framed message जो आप उसको भेज रहे हो. तो इसी तरह ना आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करो, और जिस भी कंपनी में आप चाहते हो ना कि मेरा कहीं प्लेसमेंट या कहीं इंटर्नशिप लग जाए, so you can just what you can do is you can connect with the people over the LinkedIn and you can ask for the referrals. Referrals मांगने में कोई भी बुराई नहीं है. आप जितने लोगों से रेफरल मांग सकते हो उतने लोगों से रेफरल मांगो, एंड कनेक्ट विथ एट मोस्ट पीपल एज यू कैन. तो लिंक्डइन पे जितने हो सके, कोई भी कंपनी जिसमें आपको लगता है यार मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, आस्क फॉर द रेफरल. देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर द रेफरल्स, बट इट शुड बी इन अ पोलाइट वे कि लाइक आई हैव दिस स्किल, I am from this city college, till now I have done this, और मतलब can you please provide me the referral in your company, या ये सारी चीजें, and send like your resume जो थोड़ा अच्छा होना चाहिए. Regarding the resume building, there will be a session I will just try to take up sometime, sometime like we will just take up this very session as well कि कैसे आपको resume अपना build करना चाहिए, और resume में क्या चीजें लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए. तो you should send your resume as well to the person whom you are asking for the referral. और बाकी सारी चीजें, this is basically how you can apply for the off campus placement. और अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स या ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, तो और एक चीज क्या है कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू द गूगल. ठीक है, जैसे मैं अभी हैकर ब्लॉग्स की बात कर रही थी, तो यहाँ पे आकर ना, जैसे किसी भी कंटेस्ट में जाओ तो कैटेगरी में ना, जैसे आपने यहाँ पे एरीज कर लिया, अगर यहाँ पर आकर आपने एरीज लिखा है ना, तो यहाँ पे एरीज आया, व्हेन यू विल क्लिक ओवर दिस एरीज, तो यहाँ पे आपके एरीज के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन पे क्लिक करके यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन. तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस ओवर द हैकर ब्लॉग. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि आप बेसिकली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो. ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज गो टू द, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी विल टॉक अबाउट आपका माइक्रोसॉफ्ट, या इफ वी विल टॉक अबाउट आपका कोई भी कंपनी, मान लो एडोब की बात कर रहे हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो फॉर द एडोब करियर पेज. फॉर एग्जांपल जिस भी कंपनी पे आप, जैसे पेयू है या पेटीएम है, तो पेटीएम करियर पेज, आपने माइक्रोसॉफ्ट करियर पेज, आप इस पे जाओ, और यहाँ पर आकर what you need to do is you need to go to the explore job opportunities. How you can just basically apply off campus, वो वाली चीज मैं कह रही हूँ. ऑन कैंपस तो जो भी कंपनीज आती है, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू जस्ट वांट टू अप्लाई फॉर द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, सो यू कैन गो टू द करियर पेज ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर कंपनी, एंड यू कैन सी हियर देयर इज अ टैग ऑफ फाइंड ए करियर. तो फाइंड ए करियर के बाद what you can do is you can see your profile according to the things that according to the skill set that you will be having. तो यहाँ पर आकर यू कैन सी कि बहुत सारे प्रोफाइल्स है, जैसे यहाँ पे यू कैन सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, और यू कैन जस्ट क्लिक ओवर द जॉब, यू कैन सी द रिक्वायरमेंट्स दैट पर्टिकुलर जॉब इज नीडिंग, और क्या आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स है, एंड यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर दैट वेरी जॉब. सो सिमिलरली यू कैन गो फॉर एनी कंपनीज प्लेसमेंट लाइक दैट. आप बस उस कंपनी का नाम लिखो, जैसे गो फॉर द माइक्रोसॉफ्ट, तो आप यहाँ पर आकर माइक्रोसॉफ्ट एंड go for example if you want to apply in the Microsoft, तो go for the Microsoft career page, and यहाँ पर आकर Microsoft careers के बाद you can just see कि कौन सी ओपनिंग आपके अकॉर्डिंग आपको सूट कर रही है, एंड यू कैन स्टार्ट लाइक अप्लाइंग ऑफ कैंपस. तो किसी भी कंपनी में आपको अगर अप्लाई करना है, एंड इट्स बेटर, आई विल सजेस्ट कि जितनी जितनी भी रिजेक्शन मिले ना, जितना भी कहीं से रिजेक्ट हो आपका रिज्यूमे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट द रिजेक्शंस, बट जितना हो सके उतना अप्लाई करना, जहां पे भी, बीट किसी इंटर्नशिप के लिए, बीट किसी डोंट कंसिडर कि मुझे तो नहीं आता, डोंट कंसिडर दिस वेरी थिंग. तो जहां पे भी आपको लगे, जहां पे भी आपकी लगे कि ठीक है ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, बीट ऑफ और ऑन कैंपस, तो हर जगह पे अप्लाई कर लो. और थ्रू द करियर पेज, थ्रू द रेफरल्स, जैसे लिंक्डइन पे जाओगे तो लिंक्डइन पे अपने कनेक्शंस बढ़ा लो, और जहां जहां आपको रेफरल मांगना है वहीं के बेसिकली आप लोगों से कनेक्ट कर लो, एंड आस्क द रेफरल्स के यार मुझे रेफरल दे दो, या भैया मुझे रेफरल दे दो, और एनीथिंग लाइक दैट. एंड दैट शुड बी अ पोलाइट मैनर के ऐसे नहीं कि धमकी दे दी यार रेफरल देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो मतलब हम तुम्हें वो कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं. लाइक यू शुड राइट द रेफरल इन द, लाइक यू शुड राइट द मैसेज इन अ पोलाइट मैनर. So this is basically how you can apply for the off-campus placements and off-campus internships. So after that, what about cybersecurity? So cybersecurity will also help you basically
किस वाली चीज में, कि आपके प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में. बट बिफोर साइबर सिक्योरिटी यू शुड फोकस ऑन द एरिया that is data structure and algorithm and a basics of a particular language. Now there is another thing, that is कैसे जावा चूज करनी चाहिए और कैसे सी प्लस प्लस. यू कैन चूज एनी ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन अगर आपको आगे ये लगता है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट दैट वेरी थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू द लैंग्वेज फॉर द लाइक प्लेसमेंट पर्पज. तो जावा करो या सी प्लस प्लस करो, कोई भी लैंग्वेज करो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर कॉम्पिटिटिव करनी है तो देन गो फॉर सी प्लस प्लस. अगर आपको बाद में डेवलपमेंट करनी है तो गो फॉर द जावा, बिकॉज जावा में बाद में डेवलपमेंट आसान हो जाती है. सो दोनों में दिस इज द ओनली डिफरेंस. लेकिन अगर बस प्लेसमेंट के पर्पज से है तो गो फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है. Now there is roadmap for ML, so this will be some like sometime else we will take up the session over this. किसी ने ये वाली चीज पूछी है कि C++ STL really gives a good edge for competitive programming. तो देखो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अब कल आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो होता क्या है, ये जो एसटीएल बने होते हैं ना, ये सबसे अच्छे वे, मतलब सबसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि लिंक लिस्ट में एक दो वे से बना रही हूँ. वन इज मैं किसी एक वेक्टर यूज करके बना रही हूँ, सेकंड इज मैं कुछ यूज करके बना रही हूँ फॉर एग्जांपल. लेकिन वेक्टर यूज करके मेरा जो लिंक लिस्ट काम कर रहा है ना, उसमें अगर मैं वेक्टर का यूज करके फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट बना रही हूँ, तो वो जो लिंक लिस्ट बनता है ना, वो फास्टर बनता है फॉर एग्जांपल. लेकिन अगर मैं वेक्टर ना यूज करूँ तो लिंक लिस्ट जो काम करने लगता है, अगर वही कोड वेक्टर यूज करके 2 सेकंड लग रहे हैं, वही कोड को अगर मैं वेक्टर यूज ना करूँ तो 3 सेकंड लगेंगे ना. होता क्या है, जो एसटीएल बनते हैं ना, वो यही वेक्टर से बनेगा. फॉर एग्जांपल जो सबसे एग्जीक्यूशन जिसका फास्ट होता है ना, जो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाता है, तो उसकी हेल्प से हमारे एसटीएल बने होते हैं, बिकॉज एसटीएल में पीछे कोड ही तो लिखा होता है. तो बेसिकली होता क्या है ना, एसटीएल बेसिकली यूज करना इज अ गुड थिंग इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो यू शुड नो अबाउट द एसटीएल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक टॉपिक पढ़ो फिर उसका एसटीएल पढ़ो कि क्या कैसे होता है. ठीक है. So obviously STL gives the edge because you can't write everything from the basics in the competitive programming. So you should know about the STL. और STL कुछ अलग मतलब कोई तूफान नहीं होता. STL is just simply including the header file, and inside the header file the function, including the name like using the function that you want to use, and that is written inside the header file, and this is all about STL. ठीक है. Now how to prepare for internship at second year. So you can go for these very topics and it's enough to prepare for the internship in the second year. But I should suggest, as a first year or in second year, you should focus on skills in first and the second year rather than focusing on internship in the second year, because you can go for the internship in the third year as well. So rather than focusing on the internship in second year itself, focus on the internship in the third year, and usse pehle focus on the skills. उससे पहले फोकस ऑन द स्किल बिल्डिंग. ठीक है. अभी कुछ ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं. सो अब तो अगर कोई क्वेरी आई है तो यू कैन आस्क दैट वेरी क्वेरी नाउ. व्हाट इज what should be the best way to proceed in coding world as a beginner? As a beginner, go for the data structure and algorithm and a particular language, in particular language only. Don't jump to each and every language. Decide one language. चाहे आपका दोस्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, don't, it doesn't matter. आपने अगर जावा डिसाइड करा तो जावा करोगे, सी प्लस प्लस डिसाइड करा तो सी प्लस प्लस. कॉलेज वाले लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या आए, सेकेंड ईयर में क्या आए, वो सब आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, दैट इज बेसिकली बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज एंड देन डेटा स्ट्रक्चर. सो यू शुड स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर. Now how can I join group of how to prepare ourselves to crack MNCs, Google, Microsoft, Amazon. So these are the topics that one should go for, and you should, after that you should just go for the project building, that is basically using web development या Android or anything else. So you should make your projects. और ऑब्वियसली देखो, अगर दो ओपनिंग्स है और मैं हूँ और मेरा कोई दोस्त है, अब मेरे पास मुझे डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता है, मुझे वेब डेवलपमेंट भी आता है और मुझे एंड्रॉइड आता है, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसको वेब डेवलपमेंट आती है और उसको डेटा स्ट्रक्चर आता है, लेकिन दो में से लेना एक को ही है. तो ऑब्वियसली कंपनी विल प्रेफर टू टेक मी बिकॉज आई हैव मोर स्किल सेट देन हिम और हर. तो मेरे पास एंड्रॉइड भी है, मेरे पास वेब डेवलपमेंट भी है और मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर भी है, उसके पास बस वेब डेवलपमेंट और डेटा स्ट्रक्चर है. तो कंपनी क्या करेगी,
जिसके पास ज्यादा स्किल सेट है उसको ले लेगी. सो इट्स बेटर टू लाइक हैव अ गुड स्किल सेट. लेकिन जो फ्रेशर होते हैं ना उनको कंपनी इन बल्क ले जाती है. जैसे अगर ऑन कैंपस की बात करें तो कंपनी आती ही है लेने के लिए, लाइक आपकी प्लेसमेंट्स के लिए. तो अब होता ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 3 चीजें आती है और एक कोई ऐसा है जिसको 2 आती है, तो वहां पर आकर कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को 2 लेने हैं ना तो वो दोनों को ले जाती है. और सबसे मेन जो फोकस उसका रहता है उस टाइम डेटा स्ट्रक्चर पे रहता है कि दोनों को डेटा स्ट्रक्चर आता है या नहीं आता. अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है, एंड्रॉइड आती है और डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता, और दूसरा कोई पर्सन है जिसको डेटा स्ट्रक्चर आता है लेकिन उसको बाकी कुछ भी नहीं आता, तो कंपनी विल प्रेफर दैट वेरी पर्सन. ये इसलिए होता है बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर से आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है, and company wants ki a person who will be able to build the logic when he is in their company. तो इसीलिए सबसे पहले जो फोकस करना है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. देखो मैं कब से डेटा स्ट्रक्चर करे जा रही हूँ, सो यू शुड नो द basically the power of data structure and algorithm and a particular language before moving to web development, android or anything else. ठीक है. Now so I think these were the internship लगवा दो, तो I should say that थोड़ी पढ़ाई कर लो, internship भी लग जाएगी. So the roadmap I have already given. So basically what you can do is, if you people think, because there are so many people who have already decided कि चलो YouTube से करना है, but they are not able to concentrate because as you know कि यहाँ पर third year वाले या fourth year जो students है, they might be knowing this very thing as well कि हमने भी decide करा, like every student decides कि हाँ यार अब तो मेहनत करनी है. But in the programming world there should be somebody to guide you continuously to just answer your queries. because होता क्या है, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो ना और आपका कहीं अटक जाते हो, इफ देयर इज नोबडी टू टेल यू कि आप यहाँ पे अटके ना, तो आपको नफरत होने लगती है लाइक प्रोग्रामिंग से. आप बोलते हो अब नहीं खोलूंगा कभी लैपटॉप. लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि दे जस्ट पुट अप देयर लैपटॉप और छोड़ देते हैं, यार नहीं करना, हमसे नहीं हो जाएगा. तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस. So what you can do is, if you people want, so there are basically offline and the online courses on the coding blocks as well. So you can just take up the course and you can just start your journey from there. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें ये लगता है अरे हम खुद से कर लेंगे, बट जनरली जब हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आते हैं ना, एज यू कैन जस्ट कंफर्म इट फ्रॉम योर सीनियर्स एज वेल. सो जब हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आते हैं तो हमें क्या लगने लगता है, हमें ये लगता है कि यार काश हमने फर्स्ट ईयर में मतलब पहले से करा होता, काश हमने गाइडेंस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ली होती. सो यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट, बट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन कोडिंग ब्लॉक्स. And there are so many seniors already of yours who have joined basically coding blocks and they know everything about that. So I should say that they will not guide you galat se. Agar hum like if they know everything about coding blocks, so they will just guide you correctly कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. And if you want, what you can do is you can join coding blocks के we have offline और online दोनों courses हमारे पास available होते हैं. So you can basically join offline or the online courses that we have. In the online courses we have, एक तो आपको basically जो आपके recorded sessions होते हैं, that is pre-recorded, that is basically online. And we have the live version of the basically sessions as well, where the teacher come in the class and he teaches or she teaches you live. So this is basically you can join these very courses as well, and you can just check out the coding blocks platform once, and you can just see if any of the course suits you. You can just join that very course as well. Now tell me, you can raise your hand and you can tell me कि जो भी आपकी queries है. For now you can just tell me those very queries and I will be answering. So one by one you can raise your hand and you can just tell me about your queries now. I hope most of the queries I have answered. Now you can tell about the other queries as well. So please raise your hand and I will just answer the queries. Yeah, Tanvi. I have given you the mic access. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I wanted to ask, ma'am, out of C++ and Java, which is important for job placements? I should say कि जब आप कंपनीज में बैठते हो
तो it doesn't matter that whether you know C++ or whether you know Java. तो दोनों में आपको कोई भी आती है तो आप दोनों में कोई भी लैंग्वेज लाइक यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। और मैम जावा में हमें बहुत ज्यादा मतलब ये सब जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह और जावा की डेवलपमेंट जैसे आगे जो जावा की एडवांसमेंट होती है वो भी करने की जरूरत होती है कि जो नहीं, आपने बताया सिर्फ वही? नहीं, आपको देखो ये मैटर करता है आपकी स्किल सेट पे। ऑब्वियसली मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपको टाइम लगेगा, मान लो 6-7 महीने आपको लगे एक लैंग्वेज सीखने में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप 4th ईयर तक लाइक कुछ और नहीं सीखोगे, ऐसा तो नहीं है ना। यू विल आल्सो वांट कि मेरे पास भी अच्छा स्किल सेट हो। अगर मेरे पास टाइम है 6-7 महीने में अगर मैंने जावा सीखा, तो चलो थोड़ी बहुत और चीजें सीख लेते हैं सो दैट कल को मुझे और अच्छी कंपनी मिले। बिकॉज़ आप ऐसा मान लो जितना आपका अच्छा स्किल सेट होगा, आपके उतनी अच्छी कंपनी में जाने के उतने अच्छे चांसेस, राइट? तो आप ऐसा तो नहीं चाहोगे ना कि 7 महीने के बाद आपने एक जावा लैंग्वेज सीखी या सी प्लस प्लस सीखा, उसके बाद यू आर सिटिंग आइडल कि नहीं अब तो मैंने मतलब कर लिया लैंग्वेज, अब कुछ नहीं सीखूंगा। तो इट डिपेंड्स। देखो जैसे थर्ड ईयर वाले जो है उनके लिए अभी के लिए जो सबसे मोस्ट थिंग दैट मैटर्स फॉर देम इज बेसिकली एक लैंग्वेज, एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, एक लैंग्वेज। बट अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों की बात करें तो फॉर देम इट्स बेटर टू जस्ट एनहेंस देयर स्किल सेट। तो वो जावा के बाद या सी प्लस प्लस के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि वो चाहेंगे आप घर बैठ के मतलब हो गया सारा। तो व्हाट दे कैन डू इज they can go for beat web development, beat Android development, beat Java का मतलब डेवलपमेंट जो Spring Boot और बाकी सब होता है, beat Android, beat anything जिसमें वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, they can go for that very thing। और कोई मैम पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है। पाइथन में ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स होते हैं? पाइथन में अगर हम ये वाली अच्छा, और एक चीज ये होती है ना, जैसे अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी ना, जैसे सी प्लस प्लस या जावा, जैसे मैंने बताया क्यों पहले वो सीखनी चाहिए, बिकॉज स्क्रैच से चीजें स्टार्ट होती है। नाउ होता क्या है कि अगर आप एमएल पे शिफ्ट करते हो, डेटा साइंस पे शिफ्ट करते हो, तो आपको पाइथन वाली चीजें करनी होती है, लाइक यू शुड नो द पाइथन। लेकिन मैम बेसिक टीक इंटर मैटप्लॉटलिब और नमपाई ये सब पाइथन के हैं, तो पाइथन में डाटा साइंस के है ना ये? पाइथन तो हाँ जी, बेसिक। जी जी। और हमें वैसे पाइथन बेसिक ही आनी चाहिए। अब जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ ना, हम्म। सिक्स सेम में, हाँ जी। तो अब एक लैंग्वेज आनी चाहिए और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम उस लैंग्वेज में पाइथन आती है मुझे। अच्छा, आपको पाइथन आती है। सो हाँ जी। डू यू नो द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, पाइथन के सारे लिस्ट नहीं मैम वो नहीं, वो करने हैं अभी। वो करना तो पड़ेगा। उसका कोडिंग ब्लॉक्स ही करना चाहिए? हाँ, आई थिंक यू शुड, बट थर्ड ईयर में आप किस सिक्स सेमेस्टर में हो? यस मैम, टाइम थोड़ा रह गया अब तो। जनरली ना जब हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कर रहे होते हैं ना, तो जनरली जो हम प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर ऑलवेज द मतलब यू कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इन बेसिकली आपका सी प्लस प्लस और जावा। क्योंकि ओके उसमें क्या मैम। होता है ना कि जब आप चीजें कर रहे होते हो ना, तो आपको हर कोई चीज स्क्रैच से पता होती है, क्या कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। पाइथन में जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, सीखने तो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही वाली चीज हो जाएगी कि जैसे पाइथन में आपको पता होगा लिस्ट है, डिक्शनरी है आपके पास। तो होता बेसिकली उस टाइम ये है ना कि आपको ये नहीं पता, आपको कैसे पता कि लिस्ट क्या होता है, लाइक कैसे बनाना है, आप बस लिस्ट कीवर्ड यूज करते हो। तो आपको अगर कल को इंटरव्यूअर ये पूछे कि लाइक आपको कल को ये पूछे इंटरव्यूअर कि लिस्ट कैसे काम करता है, तो आप क्या बताओगे, लाइक व्हाट विल बी योर आंसर? कि मैंने बस ऐसी कीवर्ड यूज करा था और उस वो चल लिया और मैंने सोचा कि ये। तो जनरली मतलब अगर आई थिंक मतलब अगर आपको लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पाइथन में करना चाहिए, तो यू कैन गो फॉर इट। बट जनरली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम वी शुड डू इन इधर सी प्लस प्लस और जावा। वो ज्यादा बेटर रहता है प्लेसमेंट पर्पज ऑफ व्यू से। ओके तो मैम, थैंक यू मैम। ये चीज हो जाती है। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। Anybody else who is there who have any question, you can ask। देखो आए हो तो अपनी क्वेरीज लाइक सॉल्व करके ही जाओ, ज्यादा बेटर है। सो इफ यू हैव द क्वेरीज यू कैन आस्क। So yeah, there is the page, you can what you can go do is you can just see the coding blocks का online coding blocks के courses,
And here what you can do is you can just join any of the course. There is industrial training batch that is going to start. There is one of the batch that is going to start, that is the in the live courses as well. So you can just see the codingblocks.com and you can go to the courses. There are classroom courses, live courses, and online courses are there. So if you want, you can just join these very courses. And soon the batches are going to start, and there is some sale also going on. So uh, if you have any other query, let me. Okay, Puneet, yeah, you can tell me. Yes, Puneet. Yes, ma'am. Ma'am, actually, I want to know about cyber security as a pathway और उसका career दोनों पता चल जाए तो थोड़ा helpful होगा. कुछ आप बता सकते हो इसके बारे में? हाँ जी, देखो, इफ वी टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, तो बेसिकली आपका जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो लैंग्वेज प्रेफर्ड होती है, दैट्स ऑब्वियसली पाइथन. और दूसरी चीज, दैट मीन्स साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले यू शुड नो द पाइथन. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट क्रिएट द वही वाली चीजें, हैकिंग वाली चीजें आप कर रहे होते हो. You hack the Wi-Fi of other people, and you hack the Bluetooth, you hack these very things. So this is basically the things that one should know about before. Like Python ही preferred language होती है, Yes, and ma'am. you should know the Python before starting for the cyber security. एंड बाकी उसमें वही वाली चीजें होती है कि आप देन यू सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट के चलो इस पे काम करते हैं, और नेबर्स का वाईफाई हैक कर लिया या कुछ हैकिंग कर ली, तो जिसको इथिकल हैकिंग काइंड ऑफ थिंग्स दैट कम्स देयर. तो वो सारी चीजें आपके साइबर सिक्योरिटी में आती है, ठीक है. Okay. तो यू Okay. शुड नो पाइथन बेसिकली फॉर द साइबर सिक्योरिटी. मैम, और ऐसे करियर आप कुछ बता सकते हैं इसको, एज इन करियर के क्या स्कोप है इसका? As in career, I think there will be some companies. I don't know about the companies that are there for the cyber security, but yeah, you can see, like you can just go to the Google and you can just search that there will be some companies where there will be the profile of cyber security developer or anything like that. So yeah, there will be, obviously, definitely there will be scope for the cyber security developers as well. Okay, thank you, ma'am. So yeah, so I think all the Ma'am? queries I have answered. Yeah. Hanji. Okay, so ma'am, being a second year student, how should I proceed for getting internships in ML field? In ML field, generally what happens is there is the thing that we say is in ML field, generally freshers ko ML mein hiring nahi milti. As a fresher, you will not be able to get the hiring in the like ML, be it internship or be it आपका जो internship या placements. Generally we see that there is a trend that जो freshers होते हैं, जो college के pass out होते हैं, they get the job as a software developer, but they will like they don't get the placements or they don't get the internships in the like जो आपका ML वाला फील्ड होता है. और ML फील्ड में जनरली जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन लोगों को जॉब भी मिलती है और उन लोगों को ही इंटर्नशिप भी मिलती है. But still there might be some companies who can provide the like internship opportunities. लेकिन इंडिया में जनरली बहुत सारे कंपनीज आर नॉट देयर. देयर आर द कंपनीज जो आपके बाकी सारे फील्ड्स में दे प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटीज, बी इट वेब डेवलपमेंट, बी इट एंड्रॉइड. तो आपकी इंटर्नशिप्स होती है, बट एज अ फ्रेशर देयर इज वेरी लेस स्कोप इन एमएल प्लेसमेंट्स. और बोथ प्लेसमेंट्स के लिए एज अ फ्रेशर एंड इंटर्नशिप्स के लिए एज अ फ्रेशर देयर आर वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज. बट अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है कि उसको ML करना है, तो आफ्टर 2 or 3 years of experience, they went on to the ML वाली कंपनीज में and they start doing their job there. तो उस टाइम पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है because they have the experience now and they can move the like companies which are just doing the ML kind of things. और आई थिंक कि जो आपने ये बताया कि ML के लिए, इंटर्नशिप के लिए, हाउ शुड यू प्रोसीड. So what I think most of the companies don't provide the internship in ML. So rather than thinking for the internship in the ML, there might be some companies, but generally we have a less companies in India that are providing internships in the ML. So it is better to think for something else, like we will do internship in this very field rather than thinking as a fresher and doing internship in ML.
ठीक है? Okay, thank you, ma'am. And would you like to please give some tips to all the students who are sitting in the placement this year, like for the 4th year and the 3rd year students? Yeah. So for the third and the fourth year students, the first of all, I would like to say that focus on data structure and algorithm, or मतलब be a little bit confident. Don't think that हमें ना कुछ नहीं आता, because the confidence also matters in the interviews and in the be it in the interview or be it in the HR round. तो confidence बहुत ज़्यादा matter करता है. बिकॉज आप ये इस टाइम पे नहीं सोचो कि हमें तो चीजें नहीं आती, आप ये सोचो कि कंपनी इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले अगर आपको चीजें आती भी नहीं है इस टाइम पे, तो डोंट पैनिक, बट जस्ट कंसेंट्रेट ओवर द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एज मच एज यू कैन फॉर नाउ. So most of the topics that will be asked in the interviews is, as I earlier said, for now I can just tell some of the topics that you should focus on. और आपको क्या करना चाहिए, आपको there is a topic of sliding window, focus on that. Be it any like company interviews, तो आपको sliding windows पे focus करो. आपका एक टॉपिक आता है बिट मास्किंग, उस पे फोकस करो. आपका एक टॉपिक आता है दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज कॉल्ड टू पॉइंटर अप्रोच, और थोड़े बहुत एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे आपका कैडेन्स एल्गो है, जैसे आपका पिजन होल प्रिंसिपल है, जैसे आपका देयर इज अ टॉपिक लाइक टू पॉइंटर कैडेन्स पिजन होल प्रिंसिपल, और yeah, these are some of the topics that like algorithms that you can go for. There is a topic of recursion and backtracking that you should know. और रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग को थोड़ा रिवाइज कर लो. जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारे नोट्स जहाँ पे भी बनाए उनको रिवाइज करके जाओ, डोंट पैनिक. एंड आफ्टर दैट यू कैन फोकस ऑन द टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक, जो आपसे बहुत ज्यादा टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है. सो दिस शुड बी द टॉपिक. आफ्टर दैट गो टू आपके 3 डेटा स्ट्रक्चर एज अ फ्रेशर बहुत पूछते हैं. दैट इज द लिंक लिस्ट, एंड देन इट इज स्टैक्स एंड क्यूज, एंड देन इट इज बेसिकली ट्रीज. तो ज्यादा से ज्यादा इन तीनों पे फोकस करो. बाकी जो हीप्स, हैश मैप्स और जो आपका बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बहुत एज अ फ्रेशर कम चांसेस होते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी है तो पूछ भी लेते हैं. बट अगर कोई ऑफ ऑन कैंपस आ रही है और दे जस्ट वांट टू टेक अप द good amount of students, so these will be the topics that you should focus over. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जितनी भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है या जो भी क्वेश्चंस आपने करे हैं, बी इट लीड कोड, बी इट कोड फोर्सेस, या जहां से भी आपने अभी तक क्वेश्चंस करे हैं, तो जो आपको उस टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जो आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे उस टाइम प्रैक्टिस करने के टाइम, तो वो क्वेश्चंस फिर से रिवाइज करो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एज अ फ्रेशर, कंपनी आपसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछती है, कंपनी आपसे ऊप्स पूछती है थोड़ा बहुत, कंपनी आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछती है, एंड कंपनी आपसे कंप्यूटर नेटवर्क पूछती है. तो ये चीजों पे, इनमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए. पूरी की पूरी ये बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, पूरी की पूरी बुक्स पे फोकस नहीं करता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे आपके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन है, 1NF 2NF वो सब है, वो पूछते हैं, या कुछ एसक्यूएल क्वेरीज है वो सब पूछते हैं, या ऊप्स में आपका इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये थोड़ी बहुत पूछते हैं चीजें. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका डेडलॉक क्या होता है वो पूछते हैं, आपके जो राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो पूछते हैं. तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है. बाकी कंप्यूटर नेटवर्क में आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, वो सारी चीजें, मतलब आपके लेयर्स क्या क्या होते हैं, 7 लेयर्स या वो सारी चीजें पूछते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना, इन पे थोड़ा बहुत फोकस करो. सो दीज शुड बी द टॉपिक्स दैट यू शुड फोकस ओवर. एंड जो भी आपने अपने रिज्यूमे में अभी के लिए लिखा है ना, अगर आपने कोई भी ये मेंशन करा है कोई भी प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के जाना है, या जो भी टर्म आपने रिज्यूमे में सबसे मेंशन करी है, तो वो अबाउट दैट वेरी थिंग. रिज्यूमे में जो भी आपने लिखा है, फोकस ऑन दैट वेरी थिंग. ऐसी मतलब ऐसी गेस में नहीं लिखना है कि यार किया भी नहीं, पता भी नहीं है क्या, और अगर कुछ ऐसा लिखा है तो उसको हटा देना, और जितना पता है उतना ही लिखना. बिकॉज समटाइम्स द कंपनी सी कि आप कितना लाइक लॉयल भी हो, आप कितना ऑनेस्ट हो, तो यू शुड नॉट राइट दीज वेरी थिंग जो आपको पता भी नहीं है. और this is basically the things that you should focus over. And most of the time
be a little bit more confident. If you don't know the things, just try to implement कि हाँ ठीक है ये वाला solution पता है. If you are not able to optimize, don't just panic कि अरे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा. Be a little bit confident in the interviews, or basically this is the thing that you people can go for now. Okay. So I think this is everything about the session, and I hope I have answered the queries. अपने सारे notes सब कुछ revise करना, and third year fourth year वालों के लिए all the best for your placements, and first year second year वालों के लिए just prepare from now. Don't panic, don't think कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. Just concentrate on yourself, just do the things according to the topics that I mentioned. And pehle data structure and algorithms karna, because that is very important, and after that move to other things that we have in our like computer science, so go for those things after that. So this was all about the today's session. I hope this session has helped you a lot, and I have answered all the queries. So if anybody wants to say anything, so you can over to Gaurav and over to everybody. Yeah, who is conducting the session. हेलो मैम, क्विज पूछना था. दो जी क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चों. क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन? बच्चों से क्वेश्चन पूछना है. दो गुडिज के लिए जो टी शर्ट के लिए बोला था वो. Okay, so can you just tell me? I think ठीक है. Can you just tell me that for example हमारे पास ना there is a for example हमारे पास we have 25 horses. For that the people who are present here you will get the goodies for this. So for example हमारे पास ना 25 horses है, ठीक है, और हमारे पास 5 tracks given है. हमें क्या करना है, using these 5 tracks, that means ऐसा मान लो कि आपके पास ना 5 tracks given है, ठीक है, और ये 5 tracks में 25 horses given है, और 5 tracks में एक टाइम पे एक ही horse रन कर सकता है. Using these 5 tracks, what you need to do is you need to find out the first 3 horses that will come as at the first like position, the second position horse, or the third position horse. What I am saying is कि ये 25 horses की आपको races करवानी है 5 tracks पे, और each time only 5 horses can run because we have only 5 tracks. तो आपको क्या कराना है, जैसे 5 पहले हॉर्सेस उठाए और उनको एक रन करवा लिया आपने, और जो भी उनमें मतलब 5 ट्रैक्स पे उनको रन करवाया, देन नेक्स्ट 5 हॉर्सेस और उनको फिर से करवा लिया. तो इसी तरह आपको क्या अलग अलग से 25 हॉर्सेस को ये 5 ट्रैक्स पे आपको रन कराना है. एंड नाउ आफ्टर ऑल द हॉर्सेस विल रन ओवर द ट्रैक्स, आपको क्या करना है, ये फर्स्ट इन सब हॉर्सेस में जो सबसे आगे जो फर्स्ट आया होगा, आपको वो देखना है फर्स्ट कौन सा हॉर्स आएगा, सेकंड कौन सा हॉर्स आएगा, और थर्ड कौन सा हॉर्स आएगा. Can anybody here tell me कि what will be the thing that you will proceed to solve this very puzzle? So basically this is a puzzle. So you need to find out कि पहले पोजीशन पे कौन सा हॉर्स आएगा, सेकंड पोजीशन कौन सा हॉर्स होगा, और थर्ड पोजीशन पे कौन सा हॉर्स होगा. So is there anybody who can tell me the answer of this very puzzle? Yeah, so we have Utkarsh. Yeah, Utkarsh, you can tell me. Good evening, ma'am. Am I audible? Yeah, good evening. मैम हम पहले 5 टाइम्स सबको करेंगे, तो मतलब वो 25 के 25 हो जाएंगे. उनमें से जो सब फर्स्ट होंगे उनको एक और रेस में करेंगे, तो उनमें से जो टॉप 3 होंगे उनको रखेंगे. Okay. लाइक So- टोटल 6 रेसेस होंगी. Yes. और 6 रेसेस होंगी, और जो टॉप उनमें हर रेस में टॉप 1 होगा, उनकी लास्ट रेस होगी, और उसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ जाएगा. Okay. So basically what you are saying is कि पहले हम 5 हॉर्सेस को उठाकर एक यहाँ पे, 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 राइट. सो इन सब में जो फर्स्ट आएगा, तो मान लो ये वाला फर्स्ट आया, सो वी आर टेकिंग दिस वेरी हॉर्स के, ठीक है, ये फर्स्ट आया.
After that we are taking another 5 horses, one is here, 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 और इन सब में मान लो ये फर्स्ट आया तो हमने इस हॉर्स को रख दिया कि ये फर्स्ट आया. Then you are taking up फिर से 5 horses and you are taking this, और इन सब में जो फर्स्ट आया आपने उसको निकाला और आपने उसको अलग रख दिया. Then you are taking another 5 horses and इन सब में भी आपने फॉर एग्जाम्पल ये सबसे आगे दौड़ा तो आपने उसको बाहर रखा. देन आपने फिर से 5 हॉर्सेस ले लिए और इन 5 हॉर्सेस में मान लो ये वाला सबसे आगे रन करा ये 5 में, तो आपने इसको यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे रख दिया. राइट, दिस वाज द थिंग दैट यू वर टेलिंग, राइट? यस मैम. हाँ, अब आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग? मैम अब इन 5 की रेस होगी, उनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा. ओके, सो नाउ यू आर सेइंग दैट व्हाट विल बी डूइंग इज हम यहाँ पर आकर अब ये एक हॉर्स को उठाकर यहाँ रख देंगे, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, देन यहाँ, एंड इन 3 हॉर्सेस में जो फर्स्ट आएगा ऑब्वियसली दैट विल बी एट द फर्स्ट पोजीशन. इन 3 हॉर्सेस में जो सेकंड आएगा दैट विल बी एट द सेकंड, एंड इन 3 हॉर्सेस में मान लो ये थर्ड आया तो दैट विल बी एट द थर्ड पोजीशन. सो दिस वाज योर सॉल्यूशन, राइट? यस मैम. Yeah, so this is basically correct, and can you what you need to do is you can basically take, no, he is correct. If we will take up Rohit, you can just tell me. Nikhil, yes, tell me. Nikhil, I have given you the mic access. मैम अगर जो सेपरेट रेस हुई है शुरुआत में 5 हॉर्सेस की, उसमें से जो सेकंड आया होगा हो सकता है वो ओवरऑल सेकंड आ सकता है, लेकिन वो रह ही गया, फिर उसका दोबारा मैच ही नहीं हुआ. बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंसिडरिंग कि मतलब आप ये कह रहे हो ना कि ऐसा मान लो कि ये एक है फॉर एग्जांपल. आप मान लो कि ये ना 10 मीटर चला है फॉर एग्जांपल, और ये वाला हॉर्स जो है वो 9 मीटर ही चला है फॉर एग्जांपल. सो व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली कि जब हम दोबारा यहाँ पर आकर इस वाले ट्रैक में ये हॉर्स को रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट हॉर्स आया है वो 80 मतलब किलोमीटर चला है, मतलब 80 मीटर डिस्टेंस चला है, और बाकी यहाँ पे 7, 6, 5, 4 यही कह रहे हो ना. तो हमने जो फर्स्ट में लिया था वो 10 मीटर वाला लिया था हॉर्स, और ये जो सेकंड यहाँ पे आया था वो सेकंड यहाँ पर आकर हमने इग्नोर कर लिया, एंड इन द सेकंड ट्रैक हमने इसको फर्स्ट वाले को 8 वाले को ले लिया जो 8 मीटर कवर करे और बाकी को छोड़ दिया. तो उसका मतलब तो ये था कि मान लो यहाँ से मुझे 7 मीटर वाला फर्स्ट आया तो 7 मीटर, यहाँ से मुझे फॉर एग्जांपल 6 मीटर वाला फर्स्ट आया और यहाँ से 5 मीटर वाला फर्स्ट आया. बट हमारा तो आंसर ये वाला आ रहा है यहाँ 10, 8, 7, जबकि हमारा आंसर 10, 9 और 8 आना चाहिए. यही कह रहे हो ना? यस मैम. या बट बेसिकली व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज we need to consider कि अगर हम इन 5 में किसी को ऐसा मान लो, बेसिकली what we are considering basically is कि जो मतलब हर कोई हॉर्स जो हमारे पास है ना, ऐसा मान लो कि हमारे पास टोटल 25 हॉर्सेस है, और अगर हमारे पास टोटल 25 हॉर्सेस है तो जो पहला हॉर्स है वो 1 मीटर निकाल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये, और फिफ्थ 5 मीटर निकाल रहे हैं. अगर मेरा फिफ्थ हॉर्स 5 मीटर निकाल रहा है तो उसका मतलब यहाँ पर आकर मैं क्या करती हूँ, दैट दिस विल कम यहाँ पर आकर सबसे टॉप पे. अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ पर आकर, या ऐसे मान लो कि व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम कंसिडरिंग कि जो मेरा सबसे मतलब व्हाट आई एम डूइंग हियर इज बेसिकली मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पास जो मतलब दिस वाज द कंडीशन, क्योंकि आई वाज जस्ट गोइंग टू टेल दिस वेरी कंडीशन, लेकिन किसी ने हाथ रेज किया था. सो हमें ये वाली कंडीशन कंसिडर करनी है कि जो मेरे पास फॉर एग्जांपल हॉर्स है ना, इन हॉर्सेस में जो हमारा फर्स्ट आएगा ना, जो बाकी के हॉर्सेस होंगे ना, बाकी के हॉर्सेस वो जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे ना, दैट विल बी लेस देन द डिस्टेंस जो सेकंड रेस में फर्स्ट वाला हॉर्स कवर करेगा. सो वी हैव टू कंसिडर दिस वेरी सिचुएशन, देन दिस विल बी द सॉल्यूशन ओनली. अगर मैं ये कंसिडर करती हूँ कि यहाँ पे जो हॉर्स फर्स्ट आया, जैसे ये वाला हॉर्स मेरा फर्स्ट आया, जो रेस्ट ऑफ द हॉर्सेस है, आई हैव टू कंसिडर कि ये जो रेस्ट ऑफ द हॉर्सेस है, ये जो यहाँ पे जो दूसरे रेस में हमारे पास हॉर्सेस चल रहे हैं वो उनसे छोटा ही होगा.
तो देन आई कैन से कि मेरा जो सबसे तेज हॉर्स भागेगा दैट विल बी सेकंड रेस का जो फर्स्ट आएगा दैट विल बी द हॉर्स. So I have to consider जो rest of the 4 horses हो गए, they will be having the speed less than, या they will be covering the distance less than the horse that will be running, जो that will be coming first in the second time. तो हमें ये वाली चीज तब consider करनी पड़ेगी. Then this will be the solution. And ये बताओ कि what if we will not consider this situation, then how can you solve this question? Is there any solution? हाँ जी, इंद्रदेव. Can you tell me any other solution that one? Yeah. है और मतलब पाथ है, तो उसमें इंडिविजुअली जो 5-5 हॉर्स आ रहे हैं हम. आपकी आवाज तो उसमें हाँ मैम, तो 5 इंडिविजुअल हॉर्सेज को जो हम दौड़ा रहे हैं, तो उसका टोटल जो फर्स्ट रेस में जो फर्स्ट आया है उसका जो टोटल पाथ है वो ओवरऑल भी काउंट हो रहा है. फिर जो फर्स्ट रेस है उसका पाथ का डिस्टेंस काउंट नहीं हो रहा है उसको, मतलब विनर बनाने के लिए. जो आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है मुझे. सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं है. और अभी के लिए उत्कर्ष को हम इस क्वेश्चन के लिए विनर कंसीडर कर सकते हैं मैम क्या? Let us give them a chance. Okay. Because we are running out of time. Yeah, actually I know that. हाँ जी, आप बताओ. इंद्रदेव, you can continue. हाँ मैम, मैम मैं बोल रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि जो टोटल इंडिविजुअल 5 रेसेस होगा, तो उसमें जो मतलब फर्स्ट रेस में जो फर्स्ट आएगा, तो उसका जो टोटल मान लीजिए कि उसका वो पाथ 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो उसी तरह जो टोटल अलग अलग करके इंडिविजुअल 5 रेसेस होंगे, तो उसमें सब में किसी दूसरे रेस में मान लीजिए 11 मीटर 5 किलो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो उसी तरह जो लास्ट जो ओवरऑल हम मतलब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट रेस का विनर है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लास्ट में भी हम ऐड कर रहे हैं क्या, वो डिस्टेंस उसको विनर बनाने के लिए, या फिर सेपरेटली डिस्टेंस अलग अलग लास्ट वाला कवर करवा रहे हैं? नहीं, आप ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल 5 बच्चे रन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये 5 बच्चों में ये वाला जो बच्चा है ये वाला 10 मीटर रन किया. ये जो बाकी बच्चे हैं ना, ये क्या रन करते हैं उसके बाद में देखते हैं, बट 10 से तो छोटा ही जो भी इनकी डिस्टेंस. कैन यू जस्ट लाइक ऑफ योर माइक. देन व्हाट वी डू इज, जो अब हमारे पास बाकी के 5 बच्चे होते हैं ना, लाइक और 5 बच्चे आए, अब हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये 5 बच्चों में जो सबसे फर्स्ट आएगा ना, जो भी सबसे ज्यादा लाइक जो भी भागेगा बच्चा, तो मान लो इन सब बच्चों में जो फर्स्ट आया उसने 8 मीटर रेस निकाली. हमें इस पजल में ये कंसिडर करना पड़ता है कि आपने जो ये 8 लिया ना, दैट विल बी द डिस्टेंस दैट विल बी ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन द फर्स्ट रेस बाय द अदर 4 चिल्ड्रन. तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे सिचुएशन कंसिडर करनी पड़ेगी, नहीं तो इस क्विज में नहीं तो मतलब इस पजल में नहीं तो गलत हो जाएगा. बिकॉज व्हाट इफ यहाँ पे 9 वाला बच्चा यहाँ से तुमने निकाला, या व्हाट यू कैन डू इज, देखो आप ये वाली चीज भी कर सकते हो कि आप ना ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आप ऐसे भी कर सकते हो. देखो इस पजल में सबसे बेटर सोल्यूशन इज, व्हाट यू कैन डू इज, आपने पहले जो यहाँ से मतलब पहले जो 3 निकाले, आपने निकाला ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया और ये थर्ड आया, ठीक है, आपने ये 3 निकाले. अब आपने इन तीनों को क्या कर दिया, आपने इन तीनों को अलग रख दिया, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज, आपने दूसरे में से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला, तीसरे में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला. नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज, आप यहाँ पर आकर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें भी आपने पहले 3 निकाले, इसमें भी आपने पहले 3 निकाले. तो यहाँ पर आकर व्हाट यू डू नाउ इज, आपने अब ना ये सारों की कॉम्बिनेशन बनानी है, ये सारों की 5-5 की कॉम्बिनेशन बनानी है. तो 5 3s आर कितनी 15 बनेगी, उसका मतलब एक तो ये 5 रेस लगेंगे और 3 रेसेस लगेगी, ठीक है. एक में मैं इन 3 और इन 2 को दौड़ा रही हूँ, और जो ये इनका फर्स्ट आएगा तो दैट कैन बी आल्सो द सॉल्यूशन इफ लाइक इट वाज हैपनिंग कि ये वाली चीज हो रही थी कि यहाँ पे ये 9 वाला छूट जाएगा अगर 8 वाला जीत रहे हैं. तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन टेक अप दिस
और फिर इनकी अलग रेस लगा सकते हो, ये 5 की अलग से, वो 3 में जो फर्स्ट आएंगे, फिर 3 की अलग, फिर सॉरी 5 की अलग, 5 की अलग, 5 की अलग. So after that, who comes first will be first, who comes second will be second, and who comes third will be third. But for now, what we can consider is, we can just consider कि we are considering कि जो यहाँ पे first horse आएगा, जो first यहाँ पे horse आएगा वो सबसे तेज दौड़ रहा है, और जो यहाँ पे first आएगा, ये जो बाकी के horses है, इनकी स्पीड इस वाले हॉर्स से कम होगी. लाइक जो यहाँ पे सेकंड रेस में फर्स्ट आएगा, उनकी स्पीड उससे कम होगी. So after that we can just take up the Utkarsh's solution, and we can just assume that हाँ ठीक है, his solution is not particularly correct, but we can take up for now because we are running short of time. So yeah, this Okay. yeah, you Okay. can take the details, Gaurav, from Utkarsh, and we will Utkarsh, send you can reach out to Nikhil from CSE third year, provide your address, and we will forward your detail to the coding blocks, and they will send you the goodies. And we have one more question, I guess, ma'am, and I request you, ma'am, that it will be fine if you would be asking the question that can be answered in the chat itself, so that we can save the time. It's okay. So let us skip this very part because I'm having my class at 7. So let us skip this very puzzle for now. Let us see what can be done afterwards. So let us skip this very part for now. Okay. Okay. One thing can be done. Yasti, can you please put one question in the chat window, and quickly within 1 minute we can decide who is the winner. Okay, sure. Okay, please put it. और मैंने अपना नंबर कांटेक्ट शेयर कर दिया है, तो जिसको गुडिश का है ना, वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा, और किसी को कोई डाउट भी होगा ना, तो मुझसे बात कर सकता है. Yeah, you people can connect me over the LinkedIn at Mohsina Ashraf as well. So if you have any query after the session itself, so you can just talk to me after the session on the LinkedIn as well. Or you can feel always free to connect me over LinkedIn, and we can just discuss the things, and I will be able to guide you always. So Yes, we have question in the chat itself. The person who will be answering the first will be considered as the winner. Okay. Yasi, can you please tell what is the right answer and who is the first who answered this question? Okay, so the right answer is nested, and I guess Hamda was the first one to answer. Yes, Hamda Ahmed. Okay. Hamda, I request you to please reach out to Nikhil from CSE third year. Provide your detailed address wherever the goodies can be delivered, and we will send this detail to the coding blocks, and they will deliver the goodies to your address. Okay. Now it's all about closing, and first of all, I would present my thanks to all the people for attending the session. I especially thank the attendees and the organizer for being the backbone of today's Tech Talks. Now, on behalf of Platform Tech Group and the entire management group here, I thank Mohsina Ashraf ma'am for sharing their insights and graceful words with us in today's webinar. Thank you so much, Mohsina ma'am, for being with us today. Mohsina ma'am is so humble and kind towards helping the students. Guys, I'm very thankful that she agreed and gave her valuable time for us. Thank you very much, Mohsina ma'am. Yeah, thank you so much everyone for this session, and I would like to appreciate you people that you have conducted this session that will be really helpful for the people, for the students who are in first and the second year, and there should be sessions like these. So thank you, Gaurav, thank you, Yashvi, and thank you everyone who conducted this session. And I hope today's session helped you a lot, and if you people have other doubts, for now I have my class, so I just need to leave the meeting. So if you people have any other doubts, you can connect me over the LinkedIn, and I will be available there. I will be solving all your queries, and always feel free to connect me, and जो भी आपको guidance चाहिए होगी, always feel free. So thank you so much everyone. Thank you ma'am. ठीक है, बाकी मैंने भी अपना नंबर शेयर कर दिया है, तो मुझसे भी कोई डाउट हो तो बात कर सकते हो. Okay, yes, you guys, you will be
sending the address and your detail, we will be forwarding the detail to the coding blocks. And if you have any concern regarding the goodies delivery, you can connect with Ajay. He is from coding blocks and he have already provided the contact detail in the chat window. Okay, that's Okay, I all would about. like to request everyone to kindly turn on the cameras for a snapshot. It will take just 1 minute. I guess we don't have access to. Mosina ma'am, can you please provide the access? Yeah, I'm doing it. Okay. Yeah, I have given the access to everyone. You can turn on your camera now. Okay. Yes, see, you are taking the screenshot. No. Nikhil, you take the screenshot. Done. You can take it now. गौरव मुझसे भी शेयर कर देना जो स्क्रीनशॉट लोगे वो. Okay, okay, sure, sure. Okay, we are done with the screenshot. Okay, thank you so much, everyone. Bye bye. Thank you very much, ma'am. And thank you, so a much, special ma'am. thanks to Coding Blocks team for giving the time. And Okay, bye bye, everyone. Bye. okay.